All right. Hi, everyone. Hello and good evening. This is Ayesha Khan. I'm your English Literature faculty for UGC NET. Welcome to another class number 5. Class number 5 of your free crash course. फटाफट से join कर लीजिए. Also, please do confirm, am I clearly audible or should we fix the sound? This is class number 5. Please to remember, we've had 4 classes so far, and we've started this booster course with British literature. So we've covered Anglo-Saxon, Anglo-Norman, age of Chaucer, Queen Elizabeth's age, and then age of Jacobean age, and then Caroline age, Restoration age, the 18th century, and finally we are now entering into what is called the we've also covered Romantic age, by the way, and today's class is going to be on Victorian age. And trust me when I say this, if there is one age, based on my trend analysis of all the previous year papers, if there is one age in English literature that commands maximum questions, it is this age. So Victorian age, agar aapke, let's assume 25 questions aate hain, because roughly 25 questions are asked from British literature. There's a high possibility that maximum number of questions, let's call it 35 to 40% questions, aapki ek single age se aa jate hain, which is Victorian literature. ठीक है? So you have to be a little more attentive for this age, and with that we'll get started. Do remember, आपका कल टेस्ट होगा इसी एज का at 8 AM. टेस्ट कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? ऐप पर होता है. ऐप कौन सी है? अनअकैडमी की ऐप पर 8 AM आपकी स्पेशल क्लासेस में, फ्री क्लासेस में, you will have a test on the same topic. ठीक है? Chalo, should we start? Should we begin? Today is what? Today is 2nd of June, which means 2nd of June से लेकर अगर हम 22nd June date count करते हैं, तो exactly 20 days is what we have for your June cycle of UGC NET. And on that note, your first question, which is the lengthier question, I know, try not to get scared and start answering. Pre-Raphaelite Brotherhoods के बारे में question है. It was a group of painters and poets. That's your first question. करो answer. This is going to be a class where you'll have more questions from statements. ठीक है? So please make sure, डरना नहीं है. NTA बच्चे statement questions को ज़्यादा ही पूछता है, which is why I know lengthier questions को read करना is a task in itself. But get used to this. Once you get used to this, जब आप रोज करेंगे questions इस तरह के practice, by the time you have your exam, आपको आदत हो चुकी होगी. हाँ, lengthier questions are just another kind of questions. ठीक है? Okay. Chaliye, the Pre-Raphaelite Brotherhood, or the PRBs as we call them, were a group of painters and poets, and ये found कब हुआ group? 1848 में found हुआ. तो सबसे पहले इतनी aspect है. Which of the following correctly identifies the founding members and their stated program? ठीक है. It was founded by Malleus, Holman Hunt, and Dante Gabriel Rossetti. अच्छा, यहाँ तक तो correct है. Their program was to return to the detailed and natural truthfulness and spiritual sincerity of Italian art before Raphael. Now, who was Raphael, students? Raphael थे Renaissance के एक painter. अब आपको लगेगा कि इन्होंने अपने आप को Pre-Raphaelite Brotherhood कहा है, so maybe they used to look up to Raphael the painter. No, that is not the case. In fact, they believed that Raphael the painter was a bad influence on art. Right, and they wanted to go back to the times that existed before Raphael. So for them, Raphael's influence on art was not good enough, and they wanted to go to the times before Raphael, hence Raphaelites. ठीक है? Rejecting the academic conventions established after Raphael. हाँ, तो ये correct है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बट देख लेते हैं. चलो एक बार. ठीक है. Founded by Ruskin, Tennyson, बिल्कुल भी नहीं. Founded by Whistler, Swinburne and Walter Pater, also no. Option number 1 बच्चे आपका करेक्ट आंसर है. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, मुझे ये बताइए 1848 में ये ग्रुप फाउंड हुआ था. They also started a journal. जर्नल का नाम क्या था, and in what year was the journal started? The Pre-Raphaelite Brotherhood. The Pre-Raphaelite Brotherhood was a group of painters and poets. It was founded in the year 1848, which is more or less the mid of 19th century, the mid of Victorian ages, and the journal जिसमें ये अपने वर्क्स को पब्लिश किया करते थे,
That journal was called what? और वो किस year में start हुआ था? These are the two questions for you. Yes, indeed, the journal was called the JOM. और बच्चे journal start हुआ था आपका in the year 1850. तो exactly mid of 19th century में they started this journal. ठीक है? चलो, next question. Queen Victoria's reign is the longest in the British history. Up to that point, yeah, it is the longest. Queen Victoria क्या है? अपनी age तक she is the longest reigning monarch. She is the longest reigning monarch. And I did tell you in class also कि longest reigning monarch England की actually Queen Elizabeth II रही हैं, but हाँ second longest reigning monarch Queen Elizabeth है, sorry Victoria है. Which of the following events marked the beginning of Queen Victoria's reign? I mean, this is very basic, very easy, very simple. ये आपका kick starter question है basically. चलो बताओ. क्वीन विक्टोरिया बच्चे क्वीन बनती है इंग्लैंड की इन द ईयर 1837. But sometimes we also do say that 1832 is when the romantic age comes to an end. So sometimes it is said that 1832 also marks the beginning of Queen Victoria's age. Now, if you look at the age and look at the name of the age, so when Queen Victoria becomes the queen, that is the coronation of the queen happens in 1837. However, 1832 में दो मेजर चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं. One of them is Walter Scott dies in this year, and secondly the Reform Act, the first Reform Act also was passed in this year. अच्छा, who's gonna tell me second Reform Act कब पास हुआ था जिसने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया था? तो पहला रिफॉर्म एक्ट 1832 में पास हुआ. वॉल्टर स्कॉट की डेथ भी 1832 में हुई, और इसलिए हम कह देते हैं कि रोमांटिक एज कम्स टू एन एंड इन द 1832 ईयर ऑल्सो. बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वीन विक्टोरिया की एज 37 में स्टार्ट होती है, बिकॉज उनकी कॉरोनेशन 37 में हुई थी. 1901 में इनकी डेथ हो जाएगी. So she ascended to the throne on 20th June this month 1837 following the death of her uncle William the Fourth. ठीक है? Yeah. Next question for you people is, see, but Queen Victoria was only 18 years old when she became the queen. I know we have a long history of monarchs who've been really, really young. है ना? जो वो थे Henry VIII के son थे. He was so young when he becomes the king of England, and poor guy, he also dies very, very young. So Queen Victoria, imagine she was only 18 years old and she was made the Queen of England. And do remember, she was not just another Queen of England. इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो इंग्लैंड पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इंग्लैंड के बियॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग था. इतना स्ट्रॉन्ग था कि क्वीन विक्टोरिया के टाइम पर जो ब्रिटिश एम्पायर है वो अपनी पीक्स पर या अपनी हाइट्स पर पहुंच चुका था. डू रिमेंबर 1947, 1960, ये वो ईयर्स हैं जब क्वीन विक्टोरिया की रेन खत्म हो चुकी है. उसके बाद डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था. लेकिन ड्यूरिंग हर रेन 1837 टू 1901 शायद ब्रिटिश एम्पायर अपनी पीक्स पर था, अपनी हाइट्स पर था. एंड दिस ऑल्सो टेल्स अ लॉट अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग अ लीडर क्वीन विक्टोरिया एक्चुअली वाज. ठीक है? तो एट होम इन इंग्लैंड इन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर की, एंड बियॉन्ड होम, दैट इज इन द एम्पायर, इन द कॉलोनीज ऑल्सो इन्होंने अपना पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड इंश्योर किया. ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, मैच द फॉलोइंग विक्टोरियन और फिंडेसिकल. पहले मुझे बताइए फिंडेसिकल फ्रेज का मतलब क्या होता है? वर्क्स विद देयर ऑथर्स, द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द ड्रैक्यूला एंड द टाइम मशीन. पहले बताओ फिंडेसिकल क्या होता है? इसको हम 1990s वाला डेकेड है स्पेसिफिकली, वो कहते हैं कि फिंडेसिकल है. इस फ्रेज का मतलब क्या है? देखो, फिंडेसिकल होता है द एंड ऑफ सेंचुरी, द टर्न ऑफ द सेंचुरी टू बी स्पेसिफिक. इसका मतलब होता है टर्न ऑफ द सेंचुरी, है ना? अब 1890s में जो सेंचुरी है वो टूवर्ड्स 20th सेंचुरी क्या हो रही थी? प्रोग्रेस कर रही थी. तो ये जो लेट विक्टोरियन टाइम्स हैं, द 1890s, बच्चे इन 1890s को नॉटी 90s भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द नॉटी 90s. क्यों नॉटी 90s?
क्योंकि इस टाइम पर जो विक्टोरियन मोरालिटी है वो डिक्लाइन करनी स्टार्ट कर चुकी थी। इस टाइम पर जितनी भी सो कॉल्ड विक्टोरियन वैल्यूज थी, राइटर्स या इन जनरल लोग उनको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। इस एज के राइटर्स अगर आप देखोगे, ऑस्कर वाइल्ड बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ 1890s, तब आपको समझ आएगा ये वो राइटर्स हैं हु हैड लिटिल टू नो रिगार्ड फॉर द मोरालिटी ऑफ विक्टोरियन टाइम्स। अब आप इनको अरेंज नहीं करना है, इनको आपको क्या करना है, अच्छा मैच करना है, ठीक है। H.G. Wells, A Scientific Romance Imagining the Far Future, पहला मेजर इंग्लिश लैंग्वेज का टाइम ट्रैवल का जो वर्क है वो H.G. Wells ने लिखा था, विच इज कॉल्ड द टाइम मशीन, द टाइम मशीन। ब्राम स्टोकर का वर्क है बच्चे, गॉथिक हॉरर नॉवल है। हुआ क्या था, ब्राम स्टोकर ने लिखा व्हाट इज कॉल्ड ड्रैक्यूला, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऑस्कर वाइल्ड, उनकी एक ही नॉवल है, अदरवाइज ही इज प्राइमरीली नोन एज अ प्लेराइट, but the novel is called The Picture of Dorian Gray. The Picture of Dorian Gray. And then you have R.L. Stevenson, Robert Louis Stevenson, ये Scottish writer थे, along with R.M. Ballantyne and R.L. Stevenson. इन दोनों Scottish writers ने English literature में जो children's literature contribute की थी. So he wrote what is called The Strange Case of Dr. Jekyll and Dr. Hyde. ठीक है, डन। तो इस हिसाब से आंसर मैच करोगे तो आंसर आपका क्या बनेगा, 1 इज योर करेक्ट आंसर। डन। गुड इवनिंग काशिफा बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू नीड टू मैच विक्टोरियन हिस्टोरिकल इवेंट्स, इवेंट्स को मैच करना है स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स विद देयर करेक्ट डेट्स एंड सिग्निफिकेंस। द रिपील ऑफ द कॉर्न लॉज, अच्छा कॉर्न लॉज क्या थी, कॉर्न लॉज, यहाँ पर वर्ड कॉर्न यूज हो रहा है बट दिस एक्चुअली रेफर्स टू all kind of grains including cereals and grains including wheat as well, ठीक है। तो ब्रिटेन में कॉर्न की इंपोर्ट पर या इन जनरल सीरियल्स की इंपोर्ट पर कुछ बैन लगा था या कुछ ऐसा था, तो वो कॉर्न लॉज थे एंड वो कब रिपील हुए थे, 1840s में रिपील हुए थे। यहाँ पे ईयर मेंशन्ड है, अभी मेंशन्ड हाँ होना चाहिए, ठीक है। द इंडियन रिबेलियन एज इन द इंडियन म्यूटिनी, जो कि पहली अपराइजिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट पहली अपराइजिंग 1857 में हुई थी। एंड कहा जाता है जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है वो प्रॉपरली ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था विद दिस म्यूटिनी। द सेकेंड रिफॉर्म एक्ट, अभी आई डिड आस्क यू पीपल की सेकेंड रिफॉर्म एक्ट जिसने क्या किया, फ्रेंचाइज को और एक्सटेंड कर दिया, वो कब आता है। एंड द एजुकेशन एक्ट जिसने विक्टोरियन एज में एजुकेशन को कंपल्सरी, प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया था। तो 1817 में आपका आएगा एजुकेशन एक्ट, इस्टेब्लिशिंग एलिमेंट्री स्कूल्स ओवर इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है। 1846 में अबॉलिश्ड परफेक्शनिस्ट टैरिफ्स, टैक्सेस ऑन ग्रेन इंपोर्ट, ये आपका रिपील ऑफ कॉर्न लॉज हो जाएगा। एंड देन यू हैव 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक अपराइजिंग होगी मेरठ में स्टार्ट होगी इंडिया में। एंड 1867 द ईयर ऑफ डोवर बीच, also the year of a very famous work by Karl Marx. 1867 is the year जब आर्नल्ड का डोवर बीच पब्लिश हुआ the poem, but 1867 is also the year जब कार्ल मार्क्स का भी एक वर्क पब्लिश हुआ था, क्या था उसका टाइटल। तो 1867 में extended the franchise to urban male households as well. See, still there's no mention of women voters, ठीक है। अभी urban male households तक को extend कर दिया इन्होंने वोटिंग राइट्स को या फ्रेंचाइज को। तो 4 को हम मैच कर देंगे विद योर कहाँ गया, रिफॉर्म एक्ट, सेकेंड रिफॉर्म एक्ट। तो दिस इज वाई द करेक्ट आंसर इज 1 इज योर करेक्ट आंसर। बट लाइक आई आस्क्ड यू, कौन सा कार्ल मार्क्स का वर्क है जो इस एज में आता है, दास कैपिटल। रंजीत वेरी गुड बच्चे, दास कैपिटल उसकी जो फर्स्ट वॉल्यूम है ना, उसकी भी मल्टीपल वॉल्यूम्स है बट द वेरी फर्स्ट वॉल्यूम अपीयर्ड इन 1867। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, the first Reform Act of 1832 extended the parliamentary franchise to middle classes and also eliminated the rotten boroughs. अच्छा rotten boroughs क्या थी, कुछ sparsely populated constituencies। अब आपको होगी constituencies क्या हैं बच्चे, जब हम कभी भी वोटिंग होती है तो we divide the places into certain areas, those are constituencies. So there were some sparsely populated, very lightly populated constituencies in England, and इनको remove करने की बात हुई तो the rotten boroughs were eliminated। एक चीज ये हुई फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट के साथ, दूसरी चीज ये थी कि फ्रेंचाइज एक्सटेंड हो गई थी, ये भी बिल्कुल हुई थी, बट लेफ्ट वर्किंग क्लास मैन विदाउट द राइट टू वोट। हाँ, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट ने अभी भी क्या किया,
वर्किंग क्लास मैन को एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। विमेन तो एक्सक्लूडेड ही हैं बट मेन को भी इंक्लूड नहीं कर पाए थे, ठीक है, इट लेफ्ट देम आउट। The Chartist movement of 1830s to 1850s demanded universal female suffrage. Yes, it did. Annual parliaments, the secret ballot achieved all its success. Key demands during the Victorian period नहीं बचे. Chartist movement की ना 6 major demands थी, ठीक है, and no, all of them were not achieved. सारी की सारी demands meet नहीं हुई थी during the Victorian age. तो statement number 2 मैं कहूँगी incorrect है और 1 करेक्ट लग रहा है। 1 तो करेक्ट ही है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हम कहेंगे इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सारी डिमांड्स चार्टर्स मूवमेंट की यहाँ पर फुलफिल नहीं होंगी। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू मैच द विक्टोरियन लिटरेरी वर्क्स विद देयर पीरियोडिकल्स इन व्हिच दे वर सीरियलाइज्ड। गुड क्वेश्चन। कौन सी मेजर विक्टोरियन नॉवेल कौन से पीरियोडिकल में सीरियलाइज हुई थी, दैट्स योर क्वेश्चन। Dickens in Bleak House, Hardy's Tess of the D'Urbervilles, Wilkie Collins The Woman in the White, and Trollope's The Warden. चलो कर दो मैच। Bleak House, Hardy's Tess of the D'Urbervilles, Wilkie Collins The Woman in White, and Trollope's। अच्छा, हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, विच फेमस राइटर रोट, ये हमने कोर्स क्लास में, आपके प्लस कोर्स क्लास में नोट्स में डिस्कस भी किया है, लिखा भी है मेरे नोट्स में, पेड क्लास के नोट्स में। कौन से फेमस राइटर थे जिन्होंने एंथनी ट्रॉलप की वो लिखी थी स्टूडेंट्स, बायोग्राफी लिखी थी? हु रोट द बायोग्राफी ऑफ एंथनी ट्रॉलप? कौन है इनके बायोग्राफर? ही हिमसेल्फ इज अ वेरी फेमस राइटर एंड हमने इनको ब्रिटिश लिटरेचर में कवर किया था, तो वहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है अंडर माय नोट्स व्हिच सेज ही आल्सो रोट द बायोग्राफी ऑफ एंथनी ट्रॉलप। हु इज इट? तो सबसे पहले हम मैच करेंगे डिकेंस की ब्लीक हाउस कहाँ पर पब्लिश होती है। बच्चे, डिकेंस की खुद की पब्लिकेशन ऑल द ईयर राउंड में, ठीक है, डिकेंस का ये जो वर्क है वो सीरियलाइज हुआ, ठीक है। नो, वहाँ सीरियलाइज नहीं हुआ, डिकेंस के हाउस होल्ड वर्ड्स में हुआ था। आई एम सो सॉरी, डिकेंस के दो पब्लिकेशंस हैं, 2 चीजें हैं जो वो एडिट किया करते थे, हाउस होल्ड वर्ड्स ऑल्सो ऑल द ईयर राउंड। ऑल द ईयर राउंड में नहीं हुआ था, हाउस होल्ड वर्ड्स में हुआ था, माई बैड। देन थॉमस हार्डीज डेथ ऑफ द ड्यूबरविल्स, जो उनकी टेक्निकली सेकंड लास्ट नॉवल है, बिकॉज इसके बाद 1895 में बस जूड द ऑब्सक्योर आने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी सीरियलाइज होती है द ग्राफिक में, विच वाज अ विक्टोरियन इलस्ट्रेटेड वीकली, ठीक है। देन यू हैव विल्की कॉलिंस की द वुमन इन द वाइट, वो आएगी डिकेंस के हाउस होल्ड all the year round में, and then you have Trollope's Warden जो कहाँ आएगी, it was not serialized, it was completely published as a single novel by Longman, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Okay, next question, the mid-Victorian period is often called the age of high Victorianism and is characterized by relative prosperity, social stability with the optimism भी थी about the industrial progress। Okay, द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 जो हुआ था कहाँ, क्रिस्टल म्यूजियम में, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, एल्बर्ट के साथ मिलकर एक अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो दिखा दिया था, डिस्प्ले कर दिया था। सो इन 1851 क्रिस्टल पैलेस में जब ये ग्रेट एग्जीबिशन हुआ था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रिंस एल्बर्ट हु वाज द हस्बैंड, सिंबलाइज्ड ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी। क्या ये जो एग्जीबिशन है ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी को दिखा रहा था, एंड जनरेटेड इनॉर्मस नेशनल कॉन्फिडेंस, एपिटमाइजिंग द ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिट ऑफ द एरा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। मिड विक्टोरियन एज को हाई विक्टोरियनिज्म की एज भी कहा जाता है, बिकॉज इस टाइम पर सोशल स्टेबिलिटी भी मैक्स है, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज़्यादा है, एंड देयर वाज अ जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा था, ठीक है। वेरी फ्यू थिंकर्स जस्ट लाइक डिकेंस could actually see कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के साथ साथ there is also the exploitation of some selected people that comes with it,
लेकिन हर कोई इसको परसीव नहीं कर पा रहा था। तो ऑल इन ऑल हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा था, इंडस्ट्रियलिज्म अपनी पीक्स पर या अपनी हाइट्स पे था ड्यूरिंग दिस टाइम। ऑप्शन नंबर बच्चे आपकी असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, कंप्लीटली करेक्ट है, ठीक है, इट इज कंप्लीटली करेक्ट। रीजन भी आपका करेक्ट है, लेकिन रीजन समहाउ इसको एक्सप्लेन नहीं करता। अब आप कहोगे मैम क्यों नहीं करता? देखो 1851 के ग्रेट एग्जीबिशन से ब्रिटेन ने अपनी इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी तो एस्टैब्लिश कर ली थी, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हाई विक्टोरियनिज्म की सोशल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ये नहीं करता। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट के एक पोर्शन को ही एक्सप्लेन करता है, एक पोर्शन को एक्सप्लेन करता है, नॉट द सोशल स्टेबिलिटी पार्ट, विच इज वाई both of them are correct, but R is not the correct explanation of A. Anybody who is not satisfied with my answer, बता दो। Anybody who is not satisfied, ऐसा कोई जिसको लगता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक तो है बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में यू टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ठीक है। हो सकता है द एंटायर सेंटेंस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट, हो सकता है देयर इज अ पार्ट ऑफ इट दैट सीम्स टू बी जस्टिफाइजिंग द स्टेटमेंट बट रिमेनिंग नहीं करता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, next question. The term fin de siècle, like I said, end of the century, turn of the century, is associated with which specific literary and cultural phenomena in the late Victorian period? ये जो 1890s वाला decade है जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं fin de siècle और the end of the century, ये किससे एसोसिएट होता है is your next question. चलो बताओ। Achha, tomorrow, by the way, students, you have your last class for British literature, which is 20th century literature. And once we complete 20th century literature, उसके बाद आपका पूरी complete British literature का एक टेस्ट होगा, फिर आपका जो सेकेंड यूनिट है क्रैश कोर्स में वो स्टार्ट होगा। एंड आई लेट यू नो नेक्स्ट जो वीक का पूरा स्केड्यूल रहेगा क्लासेस का, आई लेट यू नो। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, मोस्ट लाइकली वो लिटरेरी थियरी है, बट आई हैव टू चेक वंस। उससे बीच में हम फिलर के लिए एक ब्रीदर के तौर पर एक लाइटर यूनिट कर लेंगे, लैंग्वेज कर लेंगे या रिसर्च कर लेंगे, आई लेट यू नो, ठीक है। फिलहाल मुझे बताइए द राइज ऑफ रियलिस्ट फिक्शन फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ गॉथिक रोमांटिसिज्म। इनफैक्ट बच्चे जो विक्टोरियन एज की रियलिज्म थी ना 1890s में, वो भी फेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो नो, इट एक्चुअली विटनेस्ड द डिक्लाइन ऑफ रियलिस्ट फिक्शन। 1890s में फिक्शन डिक्लाइन कर रहा था, जो रियलिस्ट फिक्शन है, तो ये तो नहीं होना, ठीक है। द लिटरेरी रिस्पॉन्स टू चार्ल्स डार्विन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, राइटर्स ग्रैपल्ड विद एवोल्यूशनरी पेसिमिज्म इन 1890s। नो, 1890s में तो ये नहीं ट्रू है। The emergence of new women movement and feminist campaigns for women's suffrage under Mrs. Pankhurst. A mood of aesthetic decadence, बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं aestheticism. Also, we refer to it by a phrase called art for art's sake. Art for art's sake, ठीक है। Decadence क्या होता है? एक तरह का moral decline, ठीक है, एक तरह का moral decline। तो कहा गया कि 1890s वाले जो राइटर्स हैं, they did not have much concern about morality as such. So cultural pessimism है, sexual transgression. I mean, think of Oscar Wilde, has to be sexual transgression, right? And rebellion against the very hardcore Victorian morals associated with figures like Oscar Wilde, Aubrey Beardsley, and the Yellow Book. ये correct है बच्चे। Second जो ये आपका option है, this is your correct answer, ठीक है, B correct है। Yep, indeed. मार्क कर दें, ये यहाँ पर मार्क नहीं हो पाया, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। Okay, लो। George Eliot's narrative method in Middlemarch is most closely associated with which of the following? क्या George Eliot aka Mary Ann Evans aka Mary Ann Evans ने, did she use stream of consciousness in her novel Middlemarch? उन्होंने dramatic irony का use किया था, या फिर एक wise intrusive omniscient narrator who speaks directly to the reader? क्या एक ऐसे नैरेटर का यूज किया था जो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर डायरेक्टली रीडर से ही बात कर लेता है, या फिर मल्टीपल फोकलाइजर्स थे, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज पीओवीज का यूज किया था व्हाइल नैरेटिंग हर नॉवेल मिडलमार्च? अच्छा, मिडलमार्च का सब टाइटल क्या है? इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछ लिया गया था। सो सब टाइटल ऑफ मिडलमार्च इज
अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। रंजीत वेरी गुड बच्चे, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं पास में। अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, ठीक है। ओके, अब बता दो आंसर। क्या मिडिल मार्च में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज है बच्चे? इस नैरेटिव टेक्निक का यूज ना प्राइमरीली 20th सेंचुरी मॉडर्न एज में जाके डॉरथी रिचर्डसन, जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ करने वाले हैं अलॉन्ग विद मे सिंक्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर तो इन्होंने नहीं यूज किया था, तो इसको हम कर देंगे एलिमिनेट। ड्रामेटिक आयरनी, एलिट प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव विदाउट कमेंट्री, leaving readers to detect the gap between characters' self-understanding and reality. बच्चे थॉमस टर्न सॉरी जॉर्ज एलिट इज नोन फॉर बीइंग दैट राइटर जो अपनी वॉइस के थ्रू पूरी नॉवल में कमेंट्री भी देती रहती हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यस, बट शी डिड यूज अ वेरी वाइज इंट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या है? एक ऐसा नैरेटर जो सिर्फ आपको कहानी नहीं बताएगा, कहानी के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव भी बताएगा, यानी इंट्रूसिव नैरेटर है, ओमनिसिएंट नैरेटर है, ऑल नोइंग, ऑल प्रेजेंट नैरेटर है, who speaks directly to the reader, uses analogies and philosophical digressions and exercises moral sympathy while also maintaining ironic perspective. This is your correct answer. The term fin de siècle, ये तो हो गया ना, ठीक है। The condition of England question, which preoccupied Victorian writers and thinkers, referred primarily to what social crisis? कौन से condition की बात हो रही थी when we use this phrase condition of England? क्या social crisis था? What social crisis are we talking about? The constitutional crisis caused by power struggle between monarchy and parliament. Between monarchy and parliament? नहीं. Okay. The foreign policy dilemma of managing and expanding British Empire while also maintaining peace with the European powers, also no. The appalling living and working conditions of the industrial working classes, poverty, slum housing, child labor, social inequality created by rapid industrialization. Yes, indeed. Yes, indeed. The two nation theory, but वो किसने दी थी? The two nation theory कौन सा बहुत ही famous writer है, and besides being a writer, he was also a political leader. तो उन्होंने कहा था कि इट इज एज वी हैव टू नेशंस विद इन द सेम नेशन, बिकॉज एक साइड ऑफ इंग्लैंड है जो प्रॉस्पर कर रही है, थ्राइव कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलिज्म है, और एक साइड ऑफ इंग्लैंड है जो utterly suffer कर रही है इसी इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से. सो ही गेव द आइडिया ऑफ टू नेशंस विद इन द सेम नेशन. हु वाज दिस राइटर? तो एग्जैक्टली वही कंडीशन ऑफ इंग्लैंड है, यानी जो वर्किंग क्लास वर्किंग क्लास लोग हैं, द लेबरर्स, हार्ड टाइम्स, थिंक ऑफ हार्ड टाइम्स, दे वर डीलिंग विद पावर्टी, एब्जेक्ट पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी, स्लम हाउसिंग, चाइल्ड लेबर, सोशल इनक्वालिटीज. लेकिन एक हाथ पर क्या हो रहा था? ऑन द अदर हैंड रैपिड इंडस्ट्रियलिज्म हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था. सो there's a drastic difference between these two, which is called the condition of England. ये phrase इसके लिए use होता है, ठीक है. Option number B is your correct answer. Yeah. Benjamin Disraeli, yes, Benjamin Disraeli, बिल्कुल. ठीक है. He was also the prime minister, by the way. Remember? Okay. Alfred Lord Tennyson's In Memoriam AHH 1850 में publish हुई थी. It was a lengthier poem and it was an elegy. Is for which person and what makes it so formally distinctive? Alfred, Lord Tennyson, when he loses his dear friend from Cambridge University. Loss of a friend. तो इस loss of a friend को, a friend he knew from his days of Cambridge, तो इसी loss को mourn करते हैं Tennyson in a poem that he's gonna divide into nearly 133 sections. एंड इस पोम को कंपोज करने में उन्हें अपेरेंटली 17 years लग गए थे, ठीक है. सो वाइल ही बिगैन द कॉम्पोजिशन इन 1833, जिस ईयर इनके फ्रेंड की डेथ हुई थी, 1850 में जाकर ये वर्क कंप्लीट हुआ. दैट मीन्स 17 लॉन्ग ईयर्स नियरली टाइम लगा इनको, ठीक है, राइट. तो इन्होंने ये लिखा था फॉर जॉन कीट्स. बच्चे जॉन कीट्स तो विक्टोरियन एज में वैसे भी नहीं है, ही इज फ्रॉम रोमांटिक एज. और नहीं for his father. Did Tennyson write this poem for his own father? No. For Prince Albert, जो क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड थे, नहीं, इनके लिए भी लिखा था. Although क्वीन विक्टोरिया बच्चे जब इस पोम को पढ़ा करती थी, she used to relate with it a lot because when she lost her husband, she also understood the sentiment behind this poem, ठीक है. लेकिन टेनिसन ने लिखा था when he lost his dear friend Arthur Henry Hallam as an A
AHH। तो AHH के लॉस के बाद, उनकी डेथ के बाद टेनिसन ने ये पोम लिखनी स्टार्ट की। एवरी सिंगल स्टैंजा हैड 4 लाइन्स, यानी क्वार्ट्रेन से बनी है ये पूरी पोम। 17 ईयर्स का इन्होंने टाइम लिया था। 133 सेक्शंस हैं, बिल्कुल ये पूरा करेक्ट है। अच्छा, राइम स्कीम लर्न कर लेते हैं। द राइम स्कीम इज 4 लाइन का स्टैंजा है, मतलब क्वार्ट्रेन्स ही हैं इस पोम में। एंड द राइम स्कीम इज A B B A, ठीक है, A B B A, right? It was here that Tennyson said, it is better to have loved and lost. It is better to have loved and lost than to never have loved at all. Loved at all. ठीक है, at all. Okay, option number B correct है. Next question is, you need to match these Victorian poets with their works. Pretty easy. Browning, Elizabeth Barrett Browning, Matthew Arnold and Gerard Manley Hopkins. हॉपकिंस याद है, हमने डिस्कस किया था। वैसे तो विक्टोरियन एज में ही इनका बर्थ होगा, विक्टोरियन एज में ही इनकी डेथ हो जाएगी, 19th सेंचुरी में बर्थ एंड डेथ होगा, लेकिन जो इनकी पोइट्री है वो बच्चे पब्लिश होगी अगली एज में। इनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने इनकी पोइट्री पब्लिश करवाई थी, सो टेक्निकली हॉपकिंस हिमसेल्फ बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी, बट हिज पोइट्री वाज पब्लिश इन 20th सेंचुरी। एंड इन्होंने पोम लिखी थी अबाउट अ शिपरेक, अबाउट द सिंकिंग ऑफ अ शिप। एक रियल इवेंट हुआ था जिसमें एक शिप सिंक हो गई थी और उसमें ना काफी सारी फ्रांसिस्कन नन्स जा रही थी, तो उसके बारे में ही रोट अ पोम, और उसका नाम था, हमने क्लास में डिस्कस की थी। द पोम इज कॉल्ड द रेक ऑफ ड्यूशलिन। द रेक ऑफ ड्यूशलिन, ड्यूशलिन उस शिप का नाम है, ठीक है, उस शिप का नाम है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये किसका वर्क है? ये हमारे हॉपकिंस का वर्क है, ठीक है। डोवर बीच एंड स्कॉलर जिप्सी किसके वर्क्स हैं? दोनों मैथ्यू आर्नल्ड के वर्क्स हैं, ठीक है, बिल्कुल। सॉनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज किसके सॉनेट्स हैं? 44 सॉनेट्स थे ये। हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। दिस इज बाय EBB, एलिजाबेथ बायर ब्राउनिंग, ठीक है। इनकी एक वर्ड्स नॉवल है विच इज कॉल्ड ऑरोरा ले, एंड माई लास्ट डचेस, ये वो सरफिरे ड्यूक हैं who very implicitly admits within the poem that he might have killed his own duchess. तो ठीक है, एंड रिंग द बुक ये ब्राउनिंग का वर्क है, तो इसके हिसाब से मैच करोगे तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, J.M. Hopkins developed a distinct poetic theory. Which of the following describes the concept of sprung rhythm? J.M. Hopkins ने sprung rhythm develop किया था। होता क्या है sprung rhythm? क्या होता है sprung rhythm? What is sprung rhythm? A metrical system in which lines have a fixed number of syllables but variable stresses? Nah. A deliberate rejection of all meter in favor of natural rhythms of speech? No. A system borrowed from Welsh poetry that combines internal rhyme, alliteration and assonance in each line? No. A metrical system in which lines are measured by number of stresses and not by syllables? Correct. यहाँ तक तो correct है. With each foot being with a stressed, with each foot. I hope everybody understands by now कि ये जो poetic foot होता है ये क्या होता है. हमने क्लास की थी meters in poetry, वहाँ पे डिस्कस किया था. तो यहाँ पे बच्चे मेट्रिकल सिस्टम को डिटरमिन करने के लिए सिलेबल्स को नहीं देखा जाता, फीट को देखा जा रहा है या फिर सिंगुलर फुट को देखा जाता है, ठीक है। तो विद ईच फुट बिगिनिंग विद अ स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल्स प्रोड्यूसिंग अ ड्राइविंग इरेगुलर रिदमिक एनर्जी, दिस इज करेक्ट, ये स्प्रंग रिदम है। तो एक तरह का मीटर जो पॉपुलराइज किया था J.M. हॉपकिंस ने, दैट इज कॉल्ड स्प्रंग रिदम। इस रिदम में जो आप मीटर काउंट करोगे वो सिलेबल काउंट के बेसिस पे नहीं होगा, फीट काउंट के बेसिस पे होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, Robert Browning is the greatest master of the dramatic monologue in Victorian poetry, and his poem My Last Duchess is the paradigmatic example of the form, ठीक है। assertion तो correct लग रही है। In the dramatic monologue, the speaker reveals more about himself through his speech rather than he consciously intends to. The gap between the speaker, what he actually says, and what the reader perceives constitutes the poem's ironic moral dimension. Okay. अच्छा, आपको याद होगा
ब्राउनिंग की मेजर जितने भी पोम्स हैं उन सब में ये मोर और लेस सेम ही हीरो है, ठीक है, एंड ही सीम्स टू हैव वेरी criminal like or psychotic tendencies, psychopath like tendencies, and he ends up killing the woman he loves, and the kind of justifications that he gives are interesting to look at. तो my last touches में भी आपको ये मिलेगा, and that's another poem जिसमें हमने डिस्कस किया था, वहाँ भी यही होता है. वो कौन सी पोम थी? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ए इज करेक्ट, सेकेंड इज ठीक है. ड्रामेटिक मोनोलॉग्स वैसे भी रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. ड्रामेटिक मोनोलॉग्स तो और भी राइटर्स ने यूज किया, एज इन यूलिसिस बाय टेनिसन इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, बट मास्टर किया था इस फॉर्म को ब्राउनिंग ने. In the dramatic monologue, the speaker reveals more about himself through his speech than he consciously intends to, that he chooses to. Yes, indeed, exactly. तो बच्चे आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. अब आप फिर से वही पॉइंट आएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, रीजन असर्शन को जस्टिफाई क्यों नहीं करता. मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रही हूँ आज की क्लास में, और हर ऐसे क्वेश्चन में वो हो रहा है कि आप कहते हो कि हाँ, रीजन इज डेफिनेटली करेक्टली द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन वैलिड है कि असर्शन को ये जस्टिफाई कर पा रहा है, लेकिन होता नहीं है. क्यों हो रहा है ये ऐसा? देखो ध्यान से देखते हैं. ब्राउनिंग इज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड हिज लास्ट टचेस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. बस इतनी बात है, असर्शन, ठीक है, इतनी ही बात है. रीजन, ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है? स्पीकर रिवील्स मोर अबाउट हिमसेल्फ देन ही कॉन्शियसली वांट्स टू, and there's a gap between this what the speaker actually says and what the reader, that is us, we perceive. तो बच्चे ये तो एक्सप्लेनेशन है ना कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है. हाउ इज दिस गोइंग टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? मुझे ये बताओ. आई नो क्लोजली रिलेटेड हैं, दीज आर क्लोजली रिलेटेड, बट क्या आप इसको यूज कर कर इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे? क्या ये इसका रीजन है? नहीं है बच्चे. आई नो अ लॉट ऑफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, बट ये रीजन इसका नहीं है. अब ये गलतियां एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है. चलो, now I do understand. Matthew Arnold's Dover Beach uses which extended metaphor as its central image for the loss of religious faith? 1860s में ये पोम लिखी. 1860s में चार्ल्स डार्विन्स की जो थ्योरीज हैं वो पॉपुलर हो चुकी थी, और जिसकी वजह से साइंस की तरफ जो झुकाव है वो बढ़ गया था. द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैड इंक्रीज्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिलीजियस फेथ में डिक्लाइन दिखना हम स्टार्ट कर चुके थे बाय दिस टाइम. और जो रिलीजन का जो जो हाउ वुड आई पुट दिस, जो रिलीजन का एक होल्ड था ओवर द इंग्लिश पीपल, वो धीरे धीरे वीक हो रहा था. So how does it actually, he uses a metaphor. वो क्या metaphor है? religious decline को दिखाने का, the crisis of faith को दिखाने का, the crisis of faith. अच्छा, ये poem start होती है with the lines, the sea is calm tonight, the moon lies fair. The opening lines are, he says, the sea is calm tonight, the sea is calm tonight, the moon lies fair, the moon lies fair, and then he goes on. अच्छा, by the way students, ये भी डोवर बीच भी क्या है? This is also a dramatic monologue, ठीक है. विक्टोरियन एज में काफी सारे पोएट्स हैं who did use this poetic form called dramatic monologue. तो यूलिसिस में टेनिसन ने कर ली थी, आर्नल्ड ने किया इन डोवर बीच, लेकिन सबसे ज्यादा इसको यूज किसने किया, यूज एंड अब्यूज कर दिया रादर, किसने किया? दैट वाज रॉबर्ट ब्राउनिंग. ओके, चलो. The retreat of an army leaving a deserted battlefield. Na, the tide of the sea, specifically the ebbing of the sea of faith, okay, the ebb and flow, which once girded the world like a full tide, but is now in a long melancholic withdrawal. एक tide है जो एक time पर बहुत आगे तक आ गई थी, अब वो क्या कर रही है? retreat कर रही है. It's going back now. क्या ये faith का flow है जिस तरह से tide का flow है, tide water का flow है? बिल्कुल ये correct लग रहा है. dimming of a lighthouse beacon, ना. The gradual silting of an estuary that once carried great ships but is now too shallow to navigate, also no. ठीक है. In fact ना एक exact line भी है that will justify this thing. There's an exact line that justifies this. क्या नाम है पोम का? डोवर बीच, राइट है ना? डोवर बीच, ठीक है.
देख लेते हैं एक बार. अरे 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 अरे. ओके. तो डोवर बीच, द सी इज calm tonight, the night is full, the moon lies fair. इसी में वो एग्जैक्ट लाइन आती है जहां पर आपको क्राई, हाँ, the sea of faith, ये देखो, the sea of faith was once too at the full, round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled, but now I can only hear its melancholic long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast edges, drear and naked shingles of the world. So he says the sea of faith is now declining, it is now receding, it's going back, it is withdrawing. Okay, answer justify. Okay. Next question. Tennyson's Ulysses, published in 1833, written in 1833, published in 42, presents Ulysses as a heroic figure. Ulysses कौन है? Odysseus है. ठीक है? Odysseus का ही नाम है, Latinized name है Ulysses. So टेनिसन की पोम यूलिसेस क्या करती है? It shows us a heroic figure indeed who refuses to accept old age and the retirement that comes as a result of old age. And he utters these famous lines जो कि पोम को conclude करती हैं. The lines are to strive, to seek, to find and not yield. बच्चे आपके लिए ये मंत्रा होना चाहिए आपके last 20 days का. अगर नेट क्लियर करना है ना, JRF क्रैक करना है, let this be your mantra for last 20 days, to strive, to seek, to find, but not to give up, not to yield. The dramatic monologue Ulysses has been read both as a celebration of Victorian heroic aspirations of Victorian age, and more critically as a portrait of selfish, irresponsible king who abandons his duties and his family. अच्छा, कौन होते हैं यूलिसेस की फैमिली में? He's got a wife, Penelope, and he's got a son, Telemachus. Now Ulysses has shown his bravery, his courage, and also his wisdom in the war. ठीक है, Trojan War में अपना wisdom और अपनी bravery दिखाने के बाद, after 10 long years of the Trojan War, he takes another 10 years on his journey back to his kingdom, and the kingdom is called the Kingdom of Ithaca. The Kingdom of Ithaca. So he says, well, I am headed back to the Kingdom of Ithaca, but you know what? In last 10 years, I have functioned as a soldier, as a warrior who has been actively fighting in the battlefields, and I've nearly forgotten what it meant like to be a king. So he says, how am I going to go back and adjust in the same life of being a king? Because he says, well, as a king, I am not expected to do much. I have a very savage race that I need to govern. I need to just pass some laws for some people, right? And in 10 long years, there has been a gap between the people that he rules and himself. So he says, well, these people do not know me anymore. They're not familiar with their own king. So how am I expected to go back and reconnect with them after 10 years? So bilkul bache, he is indeed a king who's trying to evade responsibility, and he does not want to go back. In fact, he says, now I've gotten used to this kind of life. I need to travel, I need to explore, right? I need to drink the life to lease. Phrase है इसमें, I will drink life to the lease. तो correct है, दोनों statements correct हैं. Both of them are correct. ठीक है? Okay. Ulysses by Alfred Lord Tennyson. Next question. G.M. Hopkins' poem The Wind Hover, 1877, has the subtitle To Christ Our Lord. What is a wind hover, and what is the poem's central perception? देखो, G.M. Hopkins की poem है तो religious theme वाली poem ही होगी, इतना तो याद ही रख लेना. ठीक है, चलो बताओ. Quickly. Did you people happen to hear about the remark that a very famous Indian journalist, news reporter, she made about teachers? So na, because as I think people who are going to be teachers themselves, as people you're going to be assistant professors tomorrow,
So I think you must have an opinion about these things, and you must be able to understand why that statement comes from a person like her, and uh, the motivations behind her, and what makes her entitled to make such a statement about a whole entire, like, this is literally attacking an entire profession, right? And that too on national television. So what do you people think about it? Like, what's your opinion? What's your take on the matter? Yeah. Yep. Batao, I would really like to know, because as students who are taught critical theory, as students who know the value of words, as students who understand how even a single word and how it's used, how it's manipulated can have a certain kind of impact. Language is political, right? Media is not apolitical, and our media is not just news. It's not just unaffected objective news, is it? No. So media persons, news anchors, reporters, these people, when they say something, it has to have some motive behind it. So why do you think did she make that statement? Windover is an autumn storm. Okay. Windover is a kestrel, a small falcon. Okay. Windover is a type of weather vane shaped by like a bird. Okay, a windover is a migratory bird. The poem uses its seasonal return as a metaphor for Christ's resurrection. No, but a windhover is a small falcon that hovers against the wind. Okay, it flies against the wind. Falcon क्या होता है? It's a bird, right? The falcon cannot hear the falconer. ये lines कहाँ से आती हैं? From another poem. The falcon cannot hear the falconer. The falcon cannot hear the falconer. So a small falcon is called the windhover. ठीक है? The poem perceives the bird's mastery of reflection of air, a reflection of Christ's glory, and achievement mastery of Christ as the supreme master of all beauty. ये correct है. ये correct है. I think she should read literary theory indeed. Half-baked knowledge, highly uninformed. Yeah. Yep. And I think but this coming from somebody whose own journalism has been questioned on multiple occasions, है ना? इंडिया जर्नलिस्ट और जो इंडिया का मीडिया है, उसकी बच्चे ऑथेंटिसिटी, उनकी जो what is the word for it, work ethics, and they've been questioned multiple times. So I think somebody like her coming from such a profession, and she knows she can easily be questioned, and she her making that statement, again, that's ironical, है ना? Chalo. Okay, next question for you people is, Alfred Lord Tennyson's long narrative poem Idylls of the King has which dominant Victorian theme? टेनिसन्स लॉन्ग नैरेटिव पोम जिसका टाइटल है इडल्स ऑफ द किंग. अब अच्छा, इसी से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन था कि इडल्स ऑफ द किंग किस बारे में है. तो ये आर्थरियन लेजेंड्स की स्टोरी को रिटेल करता है, किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल. लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है पास में, सो आई एम गोना राइट PYQ यहाँ पर. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और PYQ. चलो, द क्रेडिबिलिटी इंडीड. यप. देखो, again, the thing is, even if the statement was made about a specific few teachers in mind, again, the statement seems to be generalizing them all, right? Which is problematic, है ना? क्या आप ABC के बेसिस पर पूरे A to Z के ऊपर एक कंक्लूजन पास कर सकते हो? कौन सी फॉली है ये? कौन सा एरर है? तुम लोगों ने तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है, तो कौन सा एरर है ये कि 3-4 ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर जब आप एक इनकरेक्ट जनरलाइजेशन कर देते हो, है ना? आई थिंक दैट इज व्हाट शी डिड. ओके. Alfred Lord Tennyson's long poem Idylls of the King, the conflict between Britain and its external enemies, no decline of ideal civilization. The Round Table, Arthurian Round Table के बारे तो indeed है ये poem, through the corruption of the members, particularly the adultery of Guinevere with Lancelot. But Lancelot के कौन होते हैं? He is the perhaps the most good-looking and brave knight of the Round Table. King Arthur के Round Table के most reputed knight होते हैं.
हमारे लॉन्सलॉट, एंड ही हैज एन अफेयर विद किंग की खुद की क्वीन है जो गुइनेवियर, यूज्ड एज मॉरल एलिगरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ विक्टोरियन मॉरल वैल्यूज। ये करेक्ट है, विदाउट डाउट ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, Dickens's Bleak House is considered a formal piece. Which of the following correctly identifies its two narrative techniques? Its two narrative techniques. चलो, Charles Dickens's Bleak House is considered a formal masterpiece. Which of the following correctly identifies its two narrative techniques? देखो, I think in India the problem with teachers being looked down upon is that we have a tradition, we have had a culture where teachers were not paid. I mean, we had gurus who never even asked back for any kind of guru dakshina, remember? So because we have that culture, that knowledge was imparted free, and there was no expectation in return. And I think that idea somehow also led to the formation of the idea that teachers have to be these selfless beings, and they're going to give and give and give, and so it makes them more vulnerable and they can be questioned easily. I think it's that idea, could be anything for that matter, but yeah, pretty disappointing. Okay, Dickens's Bleak House is considered a formal masterpiece. Which of the following correctly identifies the two narrative techniques? First person narrative है by Esther Summerson, who जिनका जो perspective है naive है, retrospective है. Third person omniscient narration है past present tense में. The contrast creates ironic distance and formal sophistication. ठीक है, Bleak House में ना first person है और third person है. Okay. Second person addresses and address in third person narrative है. The unusual second person implicates the reader in the Victorian social responsibility. First person narrative by multiple characters alternating throughout the novel. इतना experimentation तो देखो मुझे लगता नहीं कि डिकेंस ने किया है. Victorian Age है ना ये. Pre-indirect discourse throughout giving the illusion of multiple consciousness. No. Correct answer is, एक तो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, मतलब आई, थ्रू द आई द स्टोरी इज टोल्ड बाय एस्थर समरसन, और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो थर्ड पर्सन ओमनिसियन नैरेटिव वाला पर्सपेक्टिव है, ठीक है, या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, you need to match the following Victorian novels with their correct descriptions. George Eliot का Middlemarch, Thomas Hardy's Tess of the Tubervilles 1891, William Makepeace Thackeray's Vanity Fair का सबटाइटल क्या था, ओरिजिनल सबटाइटल क्या था, एंड व्हाट वाज द सबटाइटल दैट थैकरे फाइनलाइज्ड और चोज, एंड ट्रॉलिप का एंथनी ट्रॉलिप का बाचेस्टर टावर्स 1857, a novel about Victorian clerical society in fictional cathedral city, a satirical novel subtitled A Novel Without a Hero. कौन से इसमें राइटर हैं, रियलिज्म के राइटर हैं, who is known for his satirical realism, अपनी social realism के लिए जाने जाते हैं, for his satirical realism. कौन है? विलियम मेकपीस थैकरे हैं. He satirized the pretensions and the expectations of Victorian society, है ना. Becky Sharp and Amelia Sedley, indeed, A Novel Without a Hero. इसका ओरिजिनल सबटाइटल भी कुछ और था बच्चे, ओरिजिनल सबटाइटल भी इसका ये नहीं था, वो भी कुछ और था, बाद में ही सेटल्ड फॉर दिस सबटाइटल. Who's going to tell me? ये क्लास में मैंने आपको नोट्स में बताया भी है, नोट्स में मैंने लिखा भी है, यू कैन गो बैक टू क्लासेस, चेक भी कर सकते हो. ओके, अ नॉवल सबटाइटल अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, मिडलमार्च है, इजीली. अ प्योर वुमन, टेस्ट की बात हो रही है, तो ये तो वैसे एविडेंट हो गया, क्वेश्चन काफी इजी हो गया, तो पी को मैच कर दो विद प्रोविंशियल लाइफ वाला ऑप्शन 3 है. क्यू को मैच कर दो, थॉमस हार्डीज टेस्ट इज द प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, तो इसको 4 से मैच कर दे. आर है विलियम मेकपीस थैकरे, इसको 2 से मैच कर दो. एस क्या है, ट्रॉलिप्स बाचेस्टर टावर, जो कि विक्टोरियन क्लेरिकल सोसाइटी के बारे में, इसको 1 से मैच कर दो. 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ है? दिस इज योर करेक्ट आंसर. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Dickens's Hard Times is his only work which is set in an industrial northern town called Coketown, and his most overt engagement with political economy debates.
Also Hard Times happens to be his shortest novel. Hard Times इनकी 15 novels में nearly 15 novels हैं. Hard Times is his 10th novel, but also happens to be Dickens's shortest novel. तो Dickens की novel is the only work जो इंडस्ट्रियल टाउन, एक फिक्शनल टाउन कोक टाउन में सेट है, बिल्कुल करेक्ट है. एंड ये बहुत ही एक्सप्लिसिटली यानी ओवर्टली एज इन बहुत ही क्लियरली ऑब्वियसली इंगेज करती है विद आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर थे. काफ़ी पॉपुलर क्यों थे बच्चे? पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के साथ इसके ऊपर जो डिस्कशंस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी. यानी 1850 नॉवल की है, 54 की नॉवल है. इन हार्ड टाइम्स डिकेंस प्राइमरी टारगेट इज यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? ये वो फिलॉसफी है जो कहती है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू उसके यूज या यूटिलिटी की वजह से डिटर्मिन होती है. Particularly the philosophy of Jeremy Bentham, satirized through the character of Thomas Gradgrind, जो कि स्कूल मास्टर होते हैं, and his emphasis on facts and hard cold facts only. He says मैं अपने स्कूल में क्या पढ़ाना चाहता हूँ, let my students be taught facts and calculations only, let there be no scope for imagination. तो ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है, both of them are correct. Yeah. Pen and pencil sketches of English society, very good, Palakshi. Next question. Marianne Evans wrote under a male pseudonym for several reasons. Which of the following most accurately identifies as one of the reasons? Marianne Evans का real name to Marianne Evans था, but all her novels are written under the pen name, the pseudonym, which is a male pseudonym, George Eliot. So why do you think she chose a male pseudonym? And that too in Victorian ages. She must have had a reason. Otherwise, किसको fame नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए अपने work के लिए credit? किसको नहीं चाहिए popularity? किसको नहीं चाहिए कि उनका hard work should be acknowledged, है ना? But despite that, she could not claim for herself all the popularity because वो अपनी novels पे अपना real name भी नहीं लिख पा रही थी. Why? To avoid social stigma attached to women novelists in Victorian times, to avoid the association of light female writing and to be taken seriously as a philosophically ambitious novelist, also to protect her unconventional personal life, her relationship with George Henry Lewis. This was her partner, but she did not marry him, by the way. वो भी Victorian times में imagine. Because her publisher Blackwood required it as a condition for his publication, no, to maintain anonymity because her early novels contain autobiographical elements that could embarrass her family. No बच्चे, एक तो इनकी जैसी राइटिंग ना लाइट राइटिंग मान ली जाती थी. फॉर एग्जाम्पल इसी सेंचुरी में, अर्लियर इन दिस सेंचुरी, 1811 से लेकर 1817 तक 6 novels by Jane Austen had been published. And 6 novels उस time पर they were considered light female novels, light writing, right? The kind of writing that could not have any solid consequences. ठीक है? And she did not want that she should suffer the same fate, which is why she thought कि मैं अपना नाम ही नहीं लिखती हूँ. Let me not put the name of a woman. And this was a very smart move, I think. This is how you navigate patriarchy. When the system does not work in your favor, when the system puts you in a position of disadvantage, you have to somehow manipulate your way and then navigate the system. है ना? So she was doing exactly that. नहीं? She was doing exactly that. Okay. Next question for you people is, Thomas Hardy's Mayor of Casterbridge opens with which defining act of the protagonist? कौन है titular mayor? Michael Henchard. क्या कर देते हैं Michael Henchard in the very opening of the novel? It's an 1886 novel, Thomas Hardy. Thomas Hardy. Alright, I just get some water for myself. Till then, please keep answering this question. ठीक है? और बातें नहीं करनी.
हाँ जी, चलिए बताइए. Such nice people you folks are. Answer is Henchard sells his own wife and infant daughter because he is under the influence of alcohol, a typical drunkard. While he's drunk, an act of extreme self-assertion that sets in motion the novel's tragic trajectory. This is indeed your correct answer. In fact, ironically, not that the act of selling is any less of a bad act, but he sells his wife and daughter for a very small little stupid amount. Chalo, next question. Wilkie Collins's The Woman in White and The Moonstone are considered pioneering works in development of sensational novel and detective fiction. Both novels use multiple narrators who each contribute part of the story. ठीक है, a technique that creates suspense, unreliable perspectives, and a structure resembling a legal investigation where evidence is assembled from different witnesses. Okay, Wilkie Collins, Woman in the White, and The Moonstone. चलो. See, I think after we finish British literature in your course class, in your crash course, we should make one change to your crash course classes, which is you will not be allowed to answer in the chat box, right? You'll have to keep a piece of paper with yourself, and उस piece of paper पे आप question को देखकर उसका answer लिखोगे, and then I'll give you, let's say, 30 seconds for each question, and then I'll reveal the answer to you, so that आप दूसरे के आंसर को देखकर अपना आंसर somehow influence नहीं हो रहा है या चेंज नहीं कर देते हो. अदरवाइज बच्चे एग्जाम में क्या होगा, यू गोइंग टू बी देयर ऑल अलोन, यू गोना हैव टू आंसर ऑल द 150 क्वेश्चंस ऑल बाय योरसेल्फ. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग एक दूसरे का आंसर देखते हो ना चैट बॉक्स में, तो समहाउ अगर आपका आंसर माइंड में कुछ और भी आ रहा होता है, आप दूसरे का देखकर वही मार्क कर देते हो, एंड इट्स नेचुरल. ठीक है, नेचुरल है, हो जाता है. सो वील मेक अ चेंज आफ्टर द ब्रिटिश लिटरेचर इज डन कि हम चैट बॉक्स में आंसर्स नहीं लिखेंगे. यू पीपल विल सिंपली राइट मैम डन डन, एंड जब डन डन लिख दोगे सारे, देन वी लुक एट द आंसर, राइट. लास्ट 20 डेज में बच्चे, लेट मी जस्ट प्रिपेयर यू फॉर एग्जाम. जिस तरह से एग्जाम में जो करना अकेले करोगे, कोई साथ में नहीं जाएगा, तो उसकी तरह प्रिपेयर करना स्टार्ट करो. ठीक है, चलो. ऑल्सो आई start try not to explain the question to you, because again, अगर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, आंसर करना थोड़ा तो आसान हो जाता है, तो आप खुद कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, राइट, बिकॉज आई डोंट गिव यू इनफ टाइम टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन, आई एक्सप्लेन इट पहले. तो हाँ, तो बच्चे आपकी जो असर्शन है वो ट्रू है, आपका रीजन भी ट्रू है. देखो कितनी इंटरेस्टिंग टेक्निक है विल्की कॉलिंस की नॉवेल्स की, जिस तरह से एक मल्टीपल नैरेटिव्स का भी यूज करते हैं. जैसे कि किसी भी कोर्ट ट्रायल में एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं अलग अलग विटनेसेस से. दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल दैट ही यूजेस बट इन हिज नॉवेल्स. तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर अगेन ए को जस्टिफाई या एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Charlotte Bronte's Jane Eyre 1847 was read by feminist critics Gilbert and Guber in The Mad Woman in the Attic as encoding a suppressed female anger. What is the central argument of Gilbert and Guber? American feminist thinkers हैं, feminist literary critics हैं, Sandra Gilbert and Susan Guber. Remember, Mad Woman in the Attic. ये titular Mad Woman कौन है? Bertha Mason, the woman who's been locked up in the attic. अब बताइए आंसर. अच्छा, किसी का अभी मैसेज आया टेलीग्राम पर कि my score, my number of questions, my number of questions in the last cycle, January cycle, December cycle जिसका एग्जाम जनवरी में हुआ था, was 73 out of 150. 73 questions they got correct, है ना. let me not name the person. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है बच्चे, मैं यहाँ आंसर कर देती हूँ इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास.
तो क्वेश्चन इज कि हाउ डू आई मेक श्योर कि अब नेक्स्ट साइकिल में मेरा इतना स्कोर हो जाए कि मुझे नेट या JRF या कम से कम नेट तो मिल ही जाए। अब देखो, जब आपने 73 क्वेश्चंस को 150 में से स्कोर कर ही लिया करेक्ट, ठीक है, आपके पास आपकी आंसर की है, आपके पास आपकी रिस्पॉन्स शीट है, उसमें देखो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर में से एक्चुअली आए थे और कितने करेक्ट हुए, थियोरी में से कितने क्वेश्चंस आए थे, कितने करेक्ट हुए। अगर आपको लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट और नंबर ऑफ एक्चुअल क्वेश्चंस के बीच में एक मेजर गैप है, दैट मीन्स आपका लिटरेरी थियोरी वीक है। तो लास्ट 20 डेज में इस लिटरेरी थियोरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके 4 या 5 क्वेश्चंस यहाँ से बढ़ जाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज वाले यूनिट में जिसमें नियरली 10 क्वेश्चंस आए थे, आपके सिर्फ 5 ही करेक्ट हुए, दैट मीन्स यहाँ पर आप अपने 3-4 क्वेश्चंस और ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से रिवाइज कर लो लास्ट फ्यू डेज में। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ ऐड हो गए, 5 क्वेश्चन यहाँ ऐड हो गए, बचे 8 क्वेश्चन आपके ऐसे ऐड हो जाएंगे। 8 to 10 क्वेश्चन का तो गैप होता है बिटवीन नेट एंड JRF। नेट एंड JRF के बीच का जो गैप रह जाता है वो मैक्सिमम चलो 12 क्वेश्चन, इससे ज्यादा का नहीं होता है। तो अपने क्वेश्चंस बचे कहाँ से आपको इंक्रीज करने हैं वो तुम खुद डिसाइड करोगे, ठीक है। या द आंसर इज Jane's calm, rational voice masks the rage of Victorian women against patriarchy, and Bertha Mason, who is the hidden wife, the mad wife in the attic, is Jane's dark double. She's a foil, embodying the rage of Jane herself, but that Jane must repress in order to survive in Victorian society. This is correct. This is correct. Honestly, the first time when I read Jane Eyre, कभी भी मैंने ये एनालिसिस नहीं की थी, but then I read the analysis, then I read that this is one of the interpretations जिसमें बर्था मेसन को as a dark double माना जाता है of Jane Eyre, and I was really convinced, I was at once convinced कि हाँ ये solid और interpretation तो है ना, because Jane has to be the perfect Victorian woman. अब आप कहोगे नहीं मैम, Jane अपने आप में एक feminist woman भी है, I mean she makes so many decisions for herself, right? She is a feminist woman. Yes, she's a feminist, but she's still not a radical feminist. She does not go out and out with her feminism. In her choice of coming back to Rochester, okay, I think there's also a slight desire to be accepted and in the Victorian society. So Jane का जो out and out rebellion है वो possible नहीं हो पाता. But Bertha Mason, I mean, she's mad. Once somebody has been labeled mad, उसके बाद बच्चे उनके पास एक लाइसेंस मिल जाता है that now they can do whatever, है ना. Now that she has been labeled mad, she goes on and does whatever she does. चलो next question. Carlyle's past and present drew on which central contrast? Thomas Carlyle, ये Scottish historian थे, Sartos to Sortus के writer भी हैं by the way. He did write a novel called Sartos the Sortus, ठीक है, and he was a Scottish historian. And इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री भी लिखी थी by the way. He did write a history of the French Revolution. पर क्वेश्चन है पास्ट एंड प्रेजेंट से, कर दो आंसर. Question is from past and present. Yes, retailored. Yes, indeed. चलो जल्दी जल्दी करो बच्चे. देयर आर अ लॉट मेनी क्वेश्चंस एंड प्लीज ये मत सोचिए कोई कि मैम ने डायरेक्ट क्वेश्चंस क्यों नहीं इंक्लूड किए हैं क्लास में. बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप खुद भी लर्न कर सकते हो. फैक्ट्स को आप अकेले बैठकर इन अ रूम विदाउट योर फेलो कॉम्पिटिटर्स भी लर्न कर सकते हो, लेकिन जब आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस को बाकी सबके साथ सॉल्व करोगे तब आपकी एक्चुअली प्रिपेयर्डनेस बूस्ट होगी. ठीक है, कौन सी नॉवल कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी वो आपको क्लास से याद नहीं होगा, वो आपको अकेले बैठ के ही याद होगा. ये अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको अकेले बैठकर ही याद होते हैं, राइट. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपने क्लास में से एक फैक्ट पिक किया और वो आपके माइंड में रह गया, अदरवाइज वो नहीं रहता है. ओनली व्हेन यू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन टू सिट एंड लर्न ऑल दोज ईयर्स, तब वो दिमाग में रहते हैं. सो कार्लाइल का पास्ट एंड प्रेजेंट क्या सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट क्या है बिटवीन द सोशल कोहेरेंस, वर्क एथिक एंड स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ medieval monasticism and the chaotic cash nexus society of the industrial present? Yes, indeed. Next question for you people is, आपको मैच करना है विक्टोरियन प्रोज राइटर्स को विद देयर की वर्क्स. कौन कौन से प्रोज राइटर्स हैं? द आर्ट क्रिटिक जॉन रस्किन, पैथेटिक फैलेसी आइडिया इन्होंने दिया था. J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल,
इफ यू एवर गेट टाइम, अगर फिलोसफी पढ़ने का मन है, JS मिल के आइडियाज पढ़ना, ठीक है, कभी अगर टाइम मिलता है आफ्टर योर नेट इज डन. Matthew Arnold, the critic of critics, the poet, the sage writer, yeah, and Walter Pater, ये आपके एस्थेटिसिज्म के राइटर हैं, एंड ये डिकेंस ऑस्कर वाइल्ड के ऊपर एक बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस थी, वॉल्टर पेटर. चलो, जॉन रस्किन, कौन कौन से वर्क्स हैं? ऑन लिबर्टी 1859, स्टुअर्ट मिल का वर्क है, ठीक है. चलो, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी टू एक्सप्रेस. स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसांस 1873, किसका वर्क है ये? दिस इज अ वर्क बाय वॉल्टर पेटर. स्टोन्स ऑफ वेनिस, एज इन आर्किटेक्चर के बारे में वर्क है, वेनिस वेनेशियन आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है, इटालियन आर्किटेक्चर के बारे में. और आर्ट क्रिटिक कौन है? जॉन रस्किन है. और क्या बचा? कल्चर एंड एनार्की 1869 का आर्नल्ड का वर्क है. बाय दैट लॉजिक ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा. जॉन रस्किन, स्टोन्स ऑफ वेनिस, Stuart Mill with his On Liberty, Arnold with his Culture and Anarchy, and Walter Pater with Studies in the History of Renaissance 1873, जिसमें he says aesthetic experience is the highest human value. So aestheticism or art for art's sake. Okay. Next question. John Henry Newman's Apologia Pro Vita Sua is an autobiographical defense of his religious life and his conversion from Anglicanism to Roman Catholicism in 1845, written in response to Charles Kingsley's accusation that he was dishonest. Okay. Newman's conversion in 1845 was the climax of the Oxford movement, Tractarianism जिसको हम कहते हैं, which he helped found in 1833, and his conversion devastated the movement by removing its most intellectually brilliant reader. Is this correct or not? देखो, I know a lot of people might argue कि syllabus वेल डिफाइंड नहीं है लिटरेचर का, विच इज़ वाई हर साल हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम आर्ग्यू करते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं और एनटीए ने क्वेश्चंस क्यों दे दिए, और हम हर साल यही कहते हैं कि एनटीए को हमारा इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है उसको क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए, ठीक है. वेदर द सिलेबस इज अ बिट टू मच, दैट इज नॉट इवन आवर कंसर्न. वी आर रेडी टू कवर ऑल दैट सिलेबस, ठीक है. Unlike Hindi literature, not saying Hindi literature is any easier to crack UGC NET in, but unlike Hindi literature, for English literature, you need to cover writers from Britain primarily, but then again, Indian writers writing in English, and then Australian writers, Russian writers, Latin American writers. So technically पूरी world literature आप cover कर रहे हो. तो ये claim कर देना कि out of syllabus कुछ है, बच्चे आप कर ही नहीं सकते claim, क्योंकि fiction तो fiction है, किसी भी country से आए, किसी भी writer से आए, किसी भी language से आए. यूनिट नंबर 1 इज ड्रामा. अब ड्रामा तो कहीं से भी आए, ठीक है. आप क्या कर सकते हो, आप ये एक्नॉलेज कर लो, एक्सेप्ट कर लो फॉर नाउ, जब तक एनटीए चेंजेस नहीं कर देता कि आप अभी वी हैव टू मेक विद डू दिस, ठीक है. ये एक्सेप्टेंस आपको हेल्प करेगी एग्जाम क्लियर करने में. एनटीए जब चेंज करेगा तब तक वी हैव टू मेक डू विद इट. तो जब ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगी कि अभी ऐसा ही है, ऐसा ही कियोटिक वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं होगा हमारे पास, कियोटिक सिलेबस ही रहेगा, वी हैव टू वर्क विद दिस, तब जाकर आपको समझ आएगा कि बच्चे अब अगला तरीका क्या है नेट या जेआरएफ क्रैक करने का, कि जितना दूसरा बच्चा प्रिपेयर करता है, जो कोर है इंग्लिश लिटरेचर का, वो तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड विद दैट. बट एडिशनली मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है स्टेटमेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, यहाँ पर बच्चे गलतियां कर कर आते हैं, ठीक है. आप खुद देख रहे हो, आपने रीजन असर्शन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इतनी बार आपने कहा कि मैम ये वाला रीजन इस असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, पर वो नहीं कर रहा था. दैट मीन्स कहाँ पर गलती है बच्चे, आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, आप लिंक एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो दो स्टेटमेंट्स के बीच में, ठीक है. या आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट था, विक्टोरियन एज में हुआ, और उसके वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स कौन थे, न्यूमैन थे. तो न्यूमैन ने बाद में क्या किया, खुद ही कन्वर्ट कर लिया, एंड ही बिकेम अ रोमन कैथलिक. अब पूरा मूवमेंट वीक हो गया क्योंकि जो उसके लीडर हैं उन्होंने ही कन्वर्ट कर लिया. तो दोनों करेक्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज
is वॉल्टर पेटर्स कंक्लूजन टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसांस. पेटर का वर्क था 1873 का. उसके कंक्लूजन में he was withdrawn in second edition and then was later restored also. Why was it controversial in the first place? Okay. Why was it controversial in the first place? देखो आइडियली क्या होना चाहिए, व्हेन दे से इंग्लिश लिटरेचर दे शुड स्पेसिफाई कि ब्रिटिश लिटरेचर तो देखो ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश वाले वर्क्स हैं, ठीक है, वेल एंड गुड. बट देन अगेन इंडियन लिटरेचर में से वहां से क्वेश्चंस आते हैं जो वर्क्स रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस के हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, right? Now obviously they have translations, and why do they have translations? Because colonialism, because everywhere the colonizer went, everywhere the British people went, they left their language behind. So all the regional texts have been translated to English. Now whose fault is that? कॉलोनाइजर की फॉल्ट है. सफ़र कौन कर रहे हैं? मेरे नेट के स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं. तो अभी कुछ कर नहीं सकते अबाउट इट. वी मेड मल्टीपल रिक्वेस्ट, ठीक है. एंड ये जो सिलेबस है इतना स्टैटिक है कि 2000 जब से पहले आपका क्या होता था, नेट यूज टू बी इन 3 एग्जाम्स. देयर यूज टू बी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3. एंड जैसे अभी आपका एक सिटिंग में पूरा पेपर होता है 3 आवर्स में, ऐसे नहीं होता था. देयर यूज टू बी अ गैप बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड एक सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, एक आंसर राइटिंग पेपर इसका पार्ट हुआ करता था. बट दैट वाज 2000, बहुत पहले की बात है, राइट. तो उसके बाद जब पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ पेपर हुआ एंड 150 क्वेश्चंस वाला पैटर्न आया, तब से ये सिलेबस स्टैटिक है, ये चेंज ही नहीं हुआ है, which is slightly problematic, है ना. चलो, यस मैम, वी आर द पुअर स्टूडेंट्स. ठीक है, कर लिया. अब सेल्फ पिटी कर लिया बच्चे. सेल्फ पिटी से कुछ नहीं होगा, ठीक है. सेल्फ पिटी से कुछ नहीं होगा, फिर भी इसी सिस्टम के साथ मैनेज करना है. व्हाट डिड आई टेल यू? जॉर्ज एलियट ने क्या किया था, देखो. व्हाट डिड जॉर्ज एलियट डू? शी न्यू कि मैं कितना भी अच्छा लिख लूं, राइट, नो मैटर हाउ गुड the quality of my writing, how much literary merit my novel has, the moment a Victorian age novel goes out in the market and it bears the name of a woman writer, उस नॉवल का कवर पेज देखकर ही ये अज्यूम कर लिया जाएगा that this must be a romance novel, this must be a novel about a womanly preoccupations, for example love, ठीक है. एंड ये एक लाइट नॉवल की तरह डिसमिस कर दी जाएगी. सो शी न्यू वेरी वेल कि सिस्टम यही है, इसी को नेविगेट करना है. लेट मी नॉट लेट दिस सिस्टम नॉट डू इनजस्टिस टू मी. तो इन्होंने अपना नेम ही चेंज कर दिया. अल्टीमेटली बच्चे वी स्टडी हर टुडे, दैट मीन्स इनका जो ये टैक्टिक था डिड वर्क. अब आपका एनटीए का यही सिस्टम है, 10 यूनिट्स है, ठीक है. अब एक्सेप्ट कर लो कि यही सिस्टम है, इसी को नेविगेट करना है, और अपनी स्ट्रेटेजिकली कैसे आपको रास्ता बनाना है इस सिस्टम में से थ्रू एंड थ्रू, बस ये डिसाइड कर लो एंड यू विल बी जॉर्ज एलियट्स ऑफ टुमारो, राइट. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, वॉल्टर पेटर ने कहा था इट अटैक्ड एंग्लिकन चर्चेस रोल इन सेंसरिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इट्स एडवोकेसी फॉर प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस एंड इट्स इंजंक्शन टू बर्न अवे विद. हाँ, ये था बच्चे. उन्होंने अपने वर्क में कहा था टू बर्न ऑलवेज विद दिस लाइक दिस हार्ड जेम लाइक फ्लेम वाज सीन एज अ डेंजरसली इमोरल आइडिया, encouraging hedonism मतलब indulgence and pleasure, indulgence वो वाली life, and aesthetic self absorption in young men. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. अब वो देखना ना, ऑस्कर वाइल्ड की डोरियन ग्रे में क्या होता है. डोरियन ग्रे का डाउनफॉल तब स्टार्ट होता है जब डोरियन ग्रे एक कैरेक्टर के इन्फ्लुएंस में आकर ही ऑल्सो स्टार्ट्स लीडिंग अ वेरी हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल. वो भी एक कैरेक्टर के हीडोनिस्टिक वर्ल्ड व्यू से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनका जो डाउनफॉल है, हिज ऑब्सेशन विद ब्यूटी, हिज ऑब्सेशन विद प्लेजर, चाहे उसके लिए उनको अपने मॉरल्स को सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े, दिस लीड्स टू हिज डाउनफॉल. तो वॉल्टर पेटर के आइडियाज भी एग्जैक्टली ऑस्कर वाइल्ड जैसे ही हैं, मोर और लेस. Okay, next question. Oscar Wilde's comedy, The Importance of Being Earnest, perhaps his most famous play, is best described as a satire targeting which of the following? Okay.
हाँ, अच्छा कल बाय द वे, हाँ एक चीज आई फॉरगॉट टू टेल यू पीपल, चलो पहले आंसर करो देन आई टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रोमांटिक एज वाली क्लास का टेस्ट नहीं हो पाया था, है ना, वी कुड नॉट हैव अ टेस्ट फॉर रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की क्लास हुई थी हमारी 31 मई को, क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 4 थी, तो वी हैड दिस क्लास ऑन 31 मई। एंड जैसे आपकी हर क्लास का नेक्स्ट मॉर्निंग टेस्ट होता है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपका रोमांटिक एज का टेस्ट अभी पेंडिंग है। So what I've decided is कि रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज, दिस क्लास, इन दोनों का एक कंबाइंड टेस्ट लेंगे कल। तो कल आपका जो 8 AM टेस्ट होगा, इट्स गोना बी अ कंबाइंड टेस्ट ऑफ बोथ द क्लासेस, ठीक है। तो अगर किसी ने रोमांटिक एज की क्लास अभी नहीं अटेंड की है, बच्चे कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब खोलना रहेगा, नहीं, एंड यूट्यूब तो खोल ही रखा है तुम लोगों ने, एंड जहाँ आपकी करंट क्लास है, ये तो कल की क्लास शेड्यूल्ड है मॉडर्न एज पे, मॉडर्न लिटरेचर पे, ठीक है। समटाइम्स आई लुक एट माई सेल्फ विद लॉन्गर हेयर, आई वंडर हु दिस इज नाउ। चलो, तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपके पास दिसंबर कोर्स में एनरोल करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हो दिसंबर साइकिल के लिए, आपके पास यहाँ पर वो ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन में एनरोल करने का। और प्लीज टू रिमेंबर, अनअकैडमी पर आपके पास सब्सक्रिप्शन मॉडल है, मतलब अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हो अपने कोर्स के लिए, तो आपको एक स्पेसिफिक कोर्स नहीं मिलता, आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है पूरी ऐप का। ये स्पेशली बेनिफिशियल रहता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके सिबलिंग्स हैं जो किसी और लैंग्वेज में या किसी और सब्जेक्ट में नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टेक्निकली आप एक ही सब्सक्रिप्शन को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, विच इज गुड थिंग। अब चाहे आपकी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट इंडिया में कुछ भी कहें, बट I think not just an academy, most teaching institutes and platforms, they've made very, they made education very, very accessible, है ना। They have made, remember, masters करते हो, MA करते हो, MA करने के बाद when you come out of masters, आपने कितनी लिटरेचर पढ़ी होती है? Not much, because I remember when I completed my masters in 2 years, I mean I had read a lot on my own, a lot of self reading I had done, but as such कितना ही पढ़ते हो एक सेमेस्टर में, है ना। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेट, फिर आपको समझ आता है कि जो नेट में आने वाला है उसका सिर्फ 10 या 5% मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो टेक्निकली दोस 2 years आर हेल एक्सपेंसिव कंपेयर टू अ 6 months कोर्स। उसके बाद भी इफ somebody targets योर, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, या सो इफ यू नीड टू एनरोल द दिसंबर कोर्स, बच्चे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर आप रेफरल कोड डाल लेना, विच इज, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो AYESHA आयशा JRF, इसको अप्लाई कर लेना, आपका डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नाउ यू कैन स्टार्ट एनरोलिंग एंड अपना जो दिसंबर की तैयारी है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी में, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास फ्री क्लास का लिंक होगा, फ्री लाइव क्लास, इस लिंक को क्लिक कर लेना। कल आपका 8 AM मैं अभी टेस्ट शेड्यूल कर दूंगी आफ्टर द क्लास, ठीक है। Yep. So answer is the vacuousness of aristocratic social conventions, the worship of triviality. But इस novel, इस play में होता क्या है? There are two women and both of them are obsessed with the name Ernest. So both of them want to marry or be with a man whose name is Ernest. So there are men who will claim that their names are Ernest, and ये mistaken identity and ये सब कुछ इसमें ये थीम्स हैं, ये ट्रोप्स हैं कुछ। द डुप्लिसिटी ऑफ विक्टोरियन अर्नेस्टनेस एंड द एब्सर्डिटी ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन, ऑल एक्सप्रेस थ्रू विट एपिग्राम। एपिग्राम्स तो क्लासिक यूज करते ही थे हमारे ऑस्कर वाइल्ड, एंड लॉजिक ऑफ डेलिबरेट इन्वर्जन, ये करेक्ट है। ओके, हाँ, इसका सबटाइटल क्या है बच्चे? The importance of being honest, the subtitle is a trivial comedy for serious people. So Oscar Wilde knew very well कि जो मेरा play है, it is indeed a trivial comedy, ठीक है, but जो उसके implications हैं, what he was trying to convey, वो serious था। Darwin's On the Origins of Species by Means of Natural Selection 1859 had which effect on Victorian literary culture? अब आप कहेंगे मैम साइंस का वर्क है, चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरीज 1859 के उन्होंने अपने वर्क ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रपोज की थी, वो विक्टोरियन एज की लिटरेरी कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं? दैट्स योर क्वेश्चन। हम्म,
Okay. I try to get out of frame students because I know questions lengthier and I try not to, obstruct and cover the question. So it was largely ignored by literary figures. अच्छा, चार्ल्स डार्विन की बुक को लिटरेरी फिगर्स इग्नोर कर सकते थे? अगर हम ये माने दैट आर्ट एंड साइंस आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर एट ऑल, तब शायद हम ये ऑप्शन जस्टिफाई कर पाते. इट वॉज इमीडिएटली रिफ्यूटेड बाय ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. क्या रिलीजियस फिगर्स ने ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इसको, इस थ्योरी को, इस एवोल्यूशन की थ्योरी को रिफ्यूट कर दिया था, गलत कह दिया था, डिसमिस कर दिया था? इट डीपेंड ऑन ऑलरेडी प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ रिलीजियस फेथ. बच्चे विक्टोरियन एज में वैसे भी रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन, सवाल उठने लगे थे एंड लोगों का जो फेथ है इफ नॉट कंप्लीटली खत्म हो रहा था, एटलीस्ट वीकन तो हो रहा था. देयर वाज ऑलरेडी अ क्राइसिस ऑफ फेथ जो ऑनगोइंग था विक्टोरियन टाइम्स में. It raised fundamental questions about human nature and human dignity and provided literary writers with new metaphors, struggle for existence, survival of the fittest that inflected both social thought and narrative fiction. ये correct है, ये correct है, ठीक है? Okay, okay. Next question. The term new woman. Let this be an NTA trigger. Let's just assume ये एक NTA trigger है, इस नेट ट्रिगर है, इस पे से क्वेश्चन बन सकता है. The concept of new woman जो कि 1890s की लिटरेचर में फिक्शनल कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, refers to which cultural phenomena? The new woman archetype. ये कैरेक्टर टाइप था जो कि 1890s में विक्टोरियन एज में न्यू वुमन आर्केटाइप आएगा और ये मॉडर्न एज में जाके थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा. So what do we have tomorrow at 8 AM students? क्या है कल 8 बजे? कल 8 बजे we have a test, combined test. ठीक है? We have a combined test. अब combined test है तो थोड़ा लेंदी होगा because I need to cover 2 ages and दोनों ages major ages हैं. So it will be a lengthier test. और romantic age के capsule notes I've already sent you people. Victorian age के notes, have I sent the capsule notes for Victorian age? For anybody who is wondering capsule notes क्या है? Capsule notes are basically your quick revision notes. तो हर एक क्लास के पहले मैं आपको एक set of capsule notes भेजती हूँ word document के फॉर्म में, PDF की फॉर्म में, जो कि printable notes हैं. अगर आप उनको प्रिंट करवाना चाहते हैं बिकॉज आपको हार्ड कॉपी से पढ़ने की आदत है, यू कैन माइट एज वेल डू इट. और वो कैप्सूल नोट्स आपकी क्विक रिवीजन के लिए, उसमें टेबल्स होते हैं तो वो आपकी इजी रिवीजन करवा देते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू योर डिस्क्रिप्टिव नोट्स. तो विक्टोरियन एज के नोट्स अभी पेंडिंग हैं, ठीक है? तो इस क्लास के बाद आपके विक्टोरियन एज के नोट्स शेयर हो जाएंगे. रोमांटिक और विक्टोरियन दोनों के मिलाकर पढ़ना. एंड ऑल दीज कैप्सूल नोट्स आर पार्ट ऑफ योर फ्री क्रैश कोर्स. ठीक है? तो आपको फ्री क्रैश कोर्स में 6 PM रोज क्लासेस तो होंगी, साथ ही साथ यू ऑल्सो हैव द कैप्सूल नोट्स. ओके, ठीक है बच्चे, गॉट इट. आई विल शेयर द नोट्स फॉर विक्टोरियन एज वेल. डन. तो कुछ उसमें चेंजेस करने होंगे, वो चेंजेस अभी मैंने नहीं किए होंगे, विच इज वाई दे हैव नॉट बीन शेयर्ड, बट आई थिंक आई डिड मेक, मोस्टली तो बने ही हुए हैं, बट जस्ट अ फ्यू चेंजेस. आई एड सम PYQs. जहाँ भी PYQs वाला मटेरियल है, ब्रैकेट्स में आई डू मेंशन PYQs. जहाँ भी आपके लिए मुझे लगता है पोटेंशियल नेट ट्रिगर है, जहाँ से नेट एग्जाम पूछ सकता है, वहाँ पर आई डू राइट ब्रैकेट्स में नेट ट्रिगर. तो उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ा करो. A conservative backlash movement arguing that women's true sphere was domestic. जैसे कि कमेंट्री पैटमोर ने एंजल इन द हाउस पोम में कहा था, तो वो न्यू वुमन कैसे हुई? वो तो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल विक्टोरियन वुमन हुई ना, ये तो गलत है. A sociological movement associated with campaigns of Emily Davis and Girton College, Cambridge. No. A romantic ideal of femininity developed by PRB. बच्चे वो न्यू वुमन कैसे हुआ? अगर रोमांटिक आइडियल है तो न्यू वुमन कैसे हुआ? नहीं. A feminist cultural formation, the educated, economically independent, potentially sexually liberated woman who challenged Victorian domestic ideology, associated with, please note, the Heavenly Twins 1893 का वर्क है सारा ग्रांट का, एंड ग्रांट एलेंस द वुमन हु डिड 1895. ये न्यू वुमन जो है इज द लिबरेटेड वुमन, जो कि 20th सेंचुरी की कंप्लीटली लिबरेटेड वुमन को एंटिसिपेट कर रही थी. ठीक है? तो ये आती है लेट विक्टोरियन एज में, 1890s में. और शी वॉज एजुकेटेड, शी वॉज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, एंड शी वॉज ऑल्सो
सेक्सुअली लिबरेटेड, राइट। और ये डोमेस्टिक विक्टोरियन एक्सपेक्टेशन को क्या करती थी, फ्लाउट करती थी ये वुमेन। और ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, इन वर्क्स लाइक द हेवनली ट्विंस बाय सारा ग्रैंड एंड यू हैव ग्रैंड एलेंस, द वुमेन हु डिड डन। अब ये दोनों टर्म्स, दोनों राइटर्स हैं, दोनों के वर्क्स हैं, दोनों के पब्लिकेशन ईयर्स हैं, ये आपको यहीं पे लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी एलिजाबेथ ब्रैडन्स Lady Audley's Secret is a defining sensational novel. What is Lady Audley's Secret and what makes the novel culturally significant? Next question. Mary Elizabeth Braddon's Lady Audley's Secret. Secret है क्या? She has committed bigamy and has attempted murder to conceal the bigamy. Okay. Lady Audley's secret is that the illegitimate daughter of a nobleman, that she carries a secret that threatens to inherit her. ठीक है. Lady Audley is secretly a spy for a foreign power, using her social position to gather intelligence. Or Lady Audley is secretly the opium addict, okay, whose habit leads to her to commit a series of crimes. No, Lady Audley has committed bigamy and she's attempted to murder somebody in order to hide that bigamy, which is the novel is culturally significant for locating criminal and transgressive behavior within the domestic sphere of Victorian lady, challenging the Coventry Petmore का जो ideal था women gender roles के बारे में, which was angel in the house, ठीक है। पर ये कॉवेंट्री पेटमोर का एंजल इन द हाउस ये जो पोएम है, ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये जो वो बाइनरी थी ना, द गुड वुमन वर्सेस द बैड वुमन, उस बाइनरी को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इज अ प्रोडक्ट ऑफ विक्टोरियन टाइम्स। इंपॉर्टेंट, which of the following correctly describes the origins of OED, Oxford English Dictionary? Oxford English Dictionary. Okay. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी OED विक्टोरियन टाइम से आती है आपके पास। इसका कोई ऐसा फीचर जो इसको एक डिस्टिंग्विशिंग डिक्शनरी बनाता है, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट द फर्स्ट टाइम कि डिक्शनरी इंग्लिश में कंपाइल होती है। नो, इनफैक्ट वी हैव सैमुअल जॉनसन्स डिक्शनरी इंग्लिश में, तो नोआ वेबस्टर द अमेरिकन लेक्सिकोग्राफर, उन्होंने भी डिक्शनरी कंपाइल कर दी थी। तो ऐसा क्या है कि ये डिक्शनरी इंपॉर्टेंट बन जाती है? Was it modeled directly on Academy Frank Ayes? अच्छा, Academy Frank Ayes का फाउंडिंग का ईयर बताइए, बिकॉज हमने इसको नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म में डिस्कस किया था। द फ्रेंच अकेडमी वाज फाउंडेड इन विच ईयर? इन 17th सेंचुरी। तो क्या ये जो OED है वो फ्रेंच अकेडमी की डिक्शनरी पर ही मॉडल की गई थी, लेकिन इंग्लिश वर्ड्स के लिए थी? एंड डिड इट प्रिस्क्राइब करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश, बैनिंग अमेरिकन स्पेलिंग्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश? क्या ये करेक्ट है? दूसरी स्टेटमेंट, OED was the work of a single scholar, James Murray, who spent nearly 40 years compiling it alone from the first principles, completing the dictionary in 1900. क्या जेम्स मरे ने अकेले ये डिक्शनरी कंपाइल की थी? जस्ट लाइक सैमुअल जॉनसन ने मोर और लेस सिंगल हैंडेडली ही अपनी डिक्शनरी कंपाइल की थी, बट दैट वाज इन 1755. OED was commissioned by Oxford University in 1837, immediately after Queen Victoria's ascension to throne, and was completed as a gift of the Great Exhibition of 1851, the famous Crystal Palace Hall exhibition. The OED was proposed by Philological Society in 57, with the first editor being Herbert Coleridge, followed by Frederick Farnwell, and then James Murray. It began its publication in fascicles from 1884, but was not completed until 1928. 1635 इंडीड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ आंसर क्या है बच्चे? ये फिलोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ 1857 ने कमीशन की थी, प्रपोज की थी कि डिक्शनरी शुड बी कंपाइल्ड।
और फिर 3 एडिटर्स रहे इसके। सबसे पहले एडिटर कौन थे? हर्बर्ट कोलरिज, उसके बाद फ्रेडरिक फर्निवेल, लास्ट में आपके जेम्स बरे आते हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो इन्होंने सिंगल हैंडेडली नहीं की थी कंपाइल, देयर वर अदर एडिटर्स एज वेल। ठीक है, चलो 1928 में जाकर ये कंप्लीट हुई। इमेजिन 1928 में, इट टुक सो लॉन्ग। 1857 में कमीशन हो गई थी, प्रपोजल आ गया था, ठीक है, और 1884 में एक्चुअली इसकी जो एडिशंस हैं वो स्टार्ट हो गई, लेकिन कंप्लीट कब होती है? इन द नेक्स्ट सेंचुरी ऑल टुगेदर। Okay, next question is, the Victorians saw a significant standardization of English spelling and grammar, partly through the spread of mass education following the Elementary Education Act of 1870 and the proliferation of printed text via cheaper printing technology. देखो, एक स्टेटमेंट में अब इतनी लेयर्स होती है ना कि आप हो सकता है कि स्टेटमेंट का एक पार्ट आपको लगे करेक्ट है, बट सारे के सारे पार्ट्स को पढ़ा करो। हो सकता है पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है, लास्ट का एक फ्रेज अगर इनकरेक्ट हो गया तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई ना। तो रीड इट वेरी केयरफुली। Victorian prescriptive grammar successfully prevented the rise of American English usage, okay, maintained a single unified standard across the British Empire. Okay, please answer. Acha, how about I take a test right now? A test of history, but history that is relevant to literature. कर ले एक test, specifically historical events का test, but all these historical events are somehow connected to and relevant for literature. Victorian period saw a standardization of English spelling and grammar due to mass education following the Elementary Education Act of 1870 and also because printed text की जो spread है वो बढ़ चुका था because अब print technology सस्ती हो चुकी थी। Correct है। Victorian prescriptive grammar successfully prevented the rise of American English usage? No, it could not. Maintaining a single unified standard across the British Empire? नहीं बचे। इस टाइम पर तो इनफैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, तो अमेरिका एंड ब्रिटेन के बीच का जो कॉन्टैक्ट था वो इतना बढ़ गया था कि लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स हैं वो भी कभी ना कभी इधर उधर होते ही रहते थे। ठीक है, चलो ओके, चलो अ क्विक टेस्ट ऑफ हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री, जस्ट हिस्ट्री। ठीक है, what battle led to the Norman conquest and what was the year of the battle? First question. Second question for you people is, the gunpowder plot was a conspiracy to assassinate which famous English king and in which year? The Great Exhibition जिसमें क्वीन विक्टोरिया अलॉन्ग विद हर हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले रखा ऑफ देयर इंडस्ट्रियलिज्म, इंग्लैंड इज इंडस्ट्रियलिज्म। दिस हैपेंड वेयर एंड इन विच ईयर? आपको वेन्यू का नाम बताना है, ईयर भी बताना है। ओके, देन द स्पेनिश सिविल वॉर हैपेंड इन विच ईयर? W.H. Auden की पोएम का नाम क्या है अबाउट दिस स्पेनिश सिविल वॉर? व्हाट इज दैट पोएम कॉल्ड? Who's gonna tell me? So स्पेनिश सिविल वॉर किस ईयर में हुआ था? अच्छा, इसी स्पेनिश सिविल वॉर में ना एक मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट हैं, he was also wounded and he was nearly fatally wounded but he did survive the wound. तो कौन से मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट हैं जिनके nearly throat में he was shot in the throat during this Spanish civil war but then he did survive? किसकी बात हो रही है? Yes, ये देखो 1605 में गन पाउडर प्लॉट हुआ था, चलो मान लेते हैं 1605 इज द ईयर ऑफ गन पाउडर प्लॉट। ओके,
James the First को James the First of England who was also the James the Sixth of Scotland. तो James the First of England को assassinate करने के लिए हुआ था. Well and good. Okay, cool. I will give you that. ठीक है. ग्रेट एग्जीबिशन हुआ इन द ईयर, अभी डिस्कस कर रहे थे हम 1851 में. कहाँ हुआ बच्चे? क्रिस्टल पैलेस में. ठीक है, क्रिस्टल पैलेस में. ओके ठीक है, चलो वेल एंड गुड. और स्पेनिश सिविल वॉर और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट डिड यू पीपल नॉट आंसर, या मैंने देखा ही नहीं. 1066 में हुआ. बैटल कौन सा था स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. बैटल ऑफ हेस्टिंग्स. बैटल ऑफ हेस्टिंग्स. ठीक है, या इसके बाद एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट हो जाती है आपकी. चलो वेल एंड गुड. years of the French Revolution and the Russian Revolution. I'm pretty sure French Revolution के years तो more or less सबको पता है, but Russian Revolution तो next century में हुआ. French Revolution happened in 18th century, towards the end of 18th century. However, Russian तो आपका 20th में होगा. तो इनके years बताइए quickly. The Bolshevik Revolution, the October Revolution. अच्छा, स्पेनिश सिविल वॉर वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कन्वीनियंटली सब मोस्टली आप सभी ने स्किप कर दिया क्योंकि आता नहीं था. 1936 वाज द ईयर. एंड हु वाज इट? कौन से राइटर थे बच्चे who had to who nearly got killed in this Spanish civil war? कौन थे वो? बच्चे एक नियर फेटल इंसिडेंट वुंड उनका हो गया था एंड ही कुड हैव डाइड बिकॉज ऑफ इट, बट देन ही जस्ट सर्वाइव्ड समहाउ. ठीक है, एंड हु इज दैट राइटर? कौन है? स्पेनिश सिविल वॉर में पार्टिसिपेट कौन कर रहा था? जॉर्ज ऑरवेल. एंड जॉर्ज ऑरवेल के थ्रोट में नियरली थ्रोट में, बस थोड़ा सा बच गए थे वो. एंड इस टाइम पर इन्होंने ये वुंड या ये इंजरी सस्टेन की थी. ठीक है. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ एंड लास्टेड फॉर नियरली अ डेकेड. सो 1799 तक ये लास्ट करता है. चलो वेल एंड गुड. रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड इन 1917. ईस्टर अपराइजिंग कब हुई थी, जिसके बारे में काफी सारे आयरिश राइटर्स ने वर्क्स लिखे हैं. तो ईस्टर अपराइजिंग हैपेंड इन विच ईयर? एंड स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में बच्चे ऑर्डन की पोएम का नाम क्या है? I know I'm bombarding you with questions, but let me see कि हिस्ट्री कितनी याद है. डबलिन में, आयरलैंड में ईस्टर अपराइजिंग हुई थी, कब हुई थी? ये क्वेश्चन है. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएम जो ऑर्डन ने लिखी थी अबाउट द स्पेनिश सिविल वॉर? क्विकली ये बेसिक चीजें ये तो पता होनी चाहिए. Easter uprising happened in 1916 indeed. In 1916, yes. अच्छा, ऑर्डन की पोएम का नाम मुझे किसी ने नहीं बताया. नोप गलत बता रहे हो. ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है. अच्छा, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन. देयर वाज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपसे एज होमवर्क क्वेश्चन पूछे थे, बट यू पीपल ऑब्वियसली डिड नॉट बॉदर टू आंसर. तो अभी बता दो. द फर्स्ट राइटर एवर टू विन नोबेल फॉर लिटरेचर. फर्स्ट Nobel winner for literature. Name the writer and name the country that the writer comes from. Then the first woman writer to win Nobel, obviously for literature, and what country does she come from? And first Indian writer to win the Nobel for literature. First Indian writer / poet / playwright, basically a writer, literary figure. Indian writer to win Nobel for literature.
The first writer ever to win 2 Bookers. First writer ever to win Booker twice. To win Booker twice. Tagore was not simply the first writer from India, but ये पहले नॉन यूरोपियन थे. इमेजिन द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिसको नोबेल मिला लिटरेचर के लिए, वो इंडिया से थे, है ना. मस्ट हैव बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड तब भी और अभी भी. He was a non-European, the first non-European and the first Indian writer to win Nobel was Tagore. ठीक है. The first writer to win Booker twice was Sally Prudhomme. Yes, indeed. French writer Sally Prudhomme was the first writer to win the Nobel for Literature. अच्छा ये भी बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल्स आज तक किस कंट्री के राइटर्स के पास हैं? Which country holds the record for maximum Nobels in literature? क्या अमेरिकन राइटर्स के पास हैं या फिर इंडियन राइटर्स के पास? तो नहीं हो सकता, बिकॉज एक ही इंडियन राइटर है जिन्हें नोबेल मिला है अभी तक, है ना. It was J.M. Coetzee. Yes, indeed, it was the African writer John Maxwell Coetzee, J.M. Coetzee, जिनको अपनी 2 नॉवेल्स, एक तो डिस्ग्रेस थी जो कि एक कैंपस नॉवेल थी, एकेडमिक नॉवेल थी, एंड द अदर नॉवेल जिसके लिए इनको मिला था बुकर वाज कॉल्ड लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के. तो ये वो आंसर हो जाएगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल्स किसके पास हैं बच्चे? फ्रेंच राइटर्स को मैक्सिमम नोबेल्स मिले हैं. तो फ्रांस इज दैट कंट्री जिसके पास आज मैक्सिमम लिटरेचर वाले नोबेल्स हैं. ठीक है, मैक्सिमम लिटरेचर वाले नोबेल्स हैं. वुमेन राइटर का नाम मुझे किसी ने नहीं बताया. बताया नहीं या फिर आई डिड नॉट सी इट. सेल्मा लेगोलॉफ. अगर नहीं पता है तो लर्न कर लो नेम. स्वीडिश राइटर. ठीक है, शी वाज द फर्स्ट वुमेन राइटर टू विन द नोबेल. ठीक है, चलो एक चीज और जो कि पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट रहता है बहुत कॉमनली, विच इज फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन बुकर. अब ये बहुत ही डिबेटेबल थोड़ा सा हो जाता है. फॉर फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन बुकर, फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर. अब देखो इसमें दो आंसर्स हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. वैसे नेट में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, बट जस्ट इन केस, हु नोज, अगर वो इतनी डिफिकल्ट साइकिल में ये पूछ लेते हैं कि फर्स्ट फोलियो पब्लिश कब हुआ, राइट. अ वेरी डिफिकल्ट पेपर जो जनवरी में हुआ था, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन था कि फर्स्ट फोलियो का पब्लिकेशन ईयर बताओ. लाइकवाइज दे माइट आस्क वन इजी क्वेश्चन. तो फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन नोबेल, सॉरी बुकर. सम ऑफ यू माइट आर्ग्यू कि सलमान रुश्दी हैं, बिकॉज उनको तो 1980s में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए ऑलरेडी मिल चुका था. बट सम ऑफ यू माइट आर्ग्यू कि सलमान रुश्दी तो इंडियन ओरिजिन के हैं, बट ओरिजिन इंडिया एज सच इंडियन राइटर क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे वो डिबेटेबल है, क्योंकि कभी कभी हम इनको डायस्पोरा राइटर्स में पढ़ते हैं, राइट. और फिर आती है आपकी अरुंधति रॉय, राइटर हु लिव्स वेरी मच इन इंडिया, है ना. तो इसलिए बच्चे एक आंसर लर्न कर लो, अरुंधति रॉय मार्क करके आना. ठीक है, अरुंधति रॉय मार्क कर आना. 1997 की नॉवल थी, इनकी डेब्यू नॉवल थी द द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, राइट. सो वी विल जस्ट रिमेंबर, एक कॉमन आंसर सब डिसाइड कर लेते हैं. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हम मार्क करेंगे, यानी अरुंधति रॉय मार्क करेंगे. अगर सलमान रुश्दी या एनटीए ने आर्ग्यू किया कि सलमान रुश्दी है, तो हम जस्टिफाई करने के लिए कॉन्टेस्ट कर देंगे. ठीक है. Okay, next question for you people is, which Victorian intellectual coined the term scientist to replace the older term natural philosopher? Such an interesting question. ये देखो, पहले साइंटिस्ट को एक नेचुरल फिलोसोफर कहा जाता था, लेकिन विक्टोरियन टाइम्स में एक इंटेलेक्चुअल थिंकर थे, उन्होंने कहा कि हाउ अबाउट वी यूज द टर्म साइंटिस्ट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम अ नेचुरल फिलोसोफर. एंड ये कॉइनेज कब की थी उन्होंने? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, एंड आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू, आपके लिए नया सवाल भी होगा. इज दिस अ न्यू क्वेश्चन? Is this a new question for you people? For most of you it should be a new question. क्या चार्ल्स डार्विन ने अपनी जब एवोल्यूशन की थ्योरीज प्रपोज की थी, लगे हाथ उन्होंने ये टर्म भी कॉइन कर दिया साइंटिस्ट?
या फिर जेएस मिल ने साइंटिस्ट टर्म कॉइन किया था, अ सिस्टम इन लॉजिक में, या फिर हमारे थॉमस हक्सली ने साइंटिस्ट टर्म कॉइन किया था मैन्स प्लेस इन नेचर में इन 1863, या फिर विलियम वेवेल ने हिज नेम इज विलियम वेवेल, ओके, coined the term scientist in 1833 at a meeting. 1833 में याद रख लेना कि AHH की डेथ भी हुई थी, राइट? At a meeting of the British Association for the Advancement of Sciences as a term analogous to artist, जिसे somebody who practices and creates art, somebody who practices and creates art, हमने वो IST suffix लगा दिया and artist बना दिया. Likewise, डिड ही से कि ऐसा करते हैं, साइंस को प्रैक्टिस करने वाले या साइंस में इनोवेशंस या इन्वेंशंस करने वाले इंसान के साथ हम IST लगा देते हैं, एंड लेट्स कॉल दिस पर्सन अ साइंटिस्ट इंस्टेड ऑफ अ नेचुरल फिलोसोफर. यस ही डिड. द ईयर वाज 1833. एक मीटिंग हो रही थी, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बेकन का वर्क है ये, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एसोसिएशन की मीटिंग थी जिसमें विलियम वेवेल ने ये टर्म कॉइन किया था, ठीक है. इज दिस अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? इसको अब भूलना नहीं आज की क्लास के बाद. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थॉमस हार्डीज जूड द ऑब्सक्योर वाज हिज लास्ट नॉवेल, ठीक है. व्हाट वर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द क्रिटिकल एंड पब्लिक आउटरीच? बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल. थॉमस हार्डी की जूड द ऑब्सक्योर वाज हिज लास्ट नॉवेल, बिकॉज उसके बाद जो रिसेप्शन आया ना, जो रिस्पॉन्स आया इनकी नॉवेल्स को, ही वाज लाइक अभी आई एम नॉट गोना, यू नो, ठीक है. Anju, very nice बच्चे. That makes me very, very happy. So your teachers don't have a right to get to be unwell? Very good. I don't know how much effort I've been putting for you people. I have absolutely no need to give you capsule notes. I made a separate Google Drive. I've reshared the Drive link with you, given you people access to the Drive link, so that whenever you want, you don't have to search for different sources. Simply जाकर एक जगह पे आप सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो. यू हैव क्लासेस, आई स्टैंड हियर फॉर 2 आवर्स लॉन्ग, ठीक है. उसके बाद टेस्ट होता है, वो अलग होता है. एंड उसके बाद अगर ये कह रहे हो ना, सो आई लिटरली कैन नॉट डू मोर. वेरी डिसअपॉइंटिंग. चलो कोई बात नहीं, हैपेंस. ओके, आंसर शुड बी थॉमस हार्डी का जूड द ऑब्सक्योर 1895 की नॉवल है. इसके बाद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट ही गेट्स, ही वाज लाइक अब मैं नॉवल लिखूंगा ही नहीं, बिकॉज दिस नॉवल attacks marriage as an institution, as a social institution, because of the frank and uninhibited treatment of sexuality that too outside marriage. Its sympathy for a woman, Sue Brideshead, who refuses conventional femininity, and its apparent pessimism about religious faith, ये सारे के सारे reasons की वजह से this novel was seen to be flouting the Victorian morals, और इस पर एक क्या हो गया था, एक outrage, एक तरह का backlash आ गया था. So this is your correct answer. And Hardy realized इस novel के बाद, वैसे ये नॉवल के इसके साथ और टेस्ट दोनों के साथ ये रियलाइजेशन उनके अंदर आ चुकी थी, दैट विक्टोरियन readers and Victorian audience was not yet ready for the kind of radical novels he was about to write, so he abandoned novel writing altogether and he became a full-time poet. F.R. Lewis, Frank Raymond Lewis, The Great Tradition 1848, argues for which of the following claims about the English novel? ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कवर नहीं किया है, क्रिटिसिज्म में कवर किया है, बट कवर हुआ है. चलो चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल. फ्रैंक रेमंड लीविस, एफ.आर. लीविस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, क्यूडी लीविस के साथ अपनी वाइफ के साथ मिलकर ही स्टार्टेड व्हाट इज कॉल्ड स्क्रूटिनी, जो कि एक जर्नल था, लेकिन इन्होंने इंग्लिश नॉवेल्स की स्टडी की थी एंड एक वर्क लिखा उसके बारे में कॉल्ड द ग्रेट ट्रेडिशन. कौन सा ग्रेट ट्रेडिशन? नॉवल राइटिंग का ग्रेट ट्रेडिशन. एंड व्हाट डिड ही से? that the great English novel tradition includes all the major Victorian Edwardian novelists except without any exception. उन्होंने कहा कि सारे के सारे Victorian Edwardian novelists को मैं great tradition का पार्ट बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं. He said कि great novelists में जॉर्ज एलियट आएंगी, okay,
हेनरी जेम्स आएंगे, ओके, जोसेफ कॉनराड आएंगे एंड डीएच लॉरेंस आएंगे. विद डिकेंस इनिशियली मार्जिनलाइज्ड एज अ ग्रेट एंटरटेनर रादर देन अ मॉरली सीरियस आर्टिस्ट. इमेजिन बच्ची, वैसे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर भी करेक्ट है, बट इमेजिन हम चार्ल्स डिकेंस को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट मानते हैं, नॉट सिंपली ऑफ विक्टोरियन एजेस बट ऑफ ऑल द एजेस. इज ही नॉट कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिक्स में? अगर हम किसी नॉवलिस्ट की बात करते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर की कैनन है, उसको एक राइटर अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, हैज़ टू बी डिकेंस. लेकिन इनका जो क्रिटिकल ओपिनियन था डिकेंस के बॉडी ऑफ वर्क्स के बारे में, वो ये था कि डिकेंस के नॉवेल्स ना, दे आर गुड एंटरटेनर्स बट ही इज़ नॉट अ मॉरली सीरियस आर्टिस्ट. देखो बच्चे, डिकेंस ने अपने नॉवेल्स में इतने सारे प्रोटेस्ट नॉवेल्स लिखी, सोशल प्रॉब्लम्स वाली नॉवेल्स लिखी, उसके बाद भी आपको क्यों लगता है कि ये ओपिनियन क्यों आया अबाउट हिज नॉवेल्स दैट ही इज़ नॉट अ मॉरली सीरियस आर्टिस्ट? डिकेंस की नॉवल में तो हम देखते हैं कि there's a criticism of child labor, there's a criticism of poverty, there's a criticism of working class people being exploited in factories. उसके बाद भी why do you think F.R. Lewis की ये observation थी about Dickens कि वो morally serious artist नहीं है? Because from where I look at his work, I think he was probably the writer जिनको हम कहते हैं कि social protest novels हैं इनकी, है ना? डिकेंस की तो सोशल प्रोटेस्ट नॉवेल्स हैं. तो अगर एक राइटर है जो होल हार्टेडली, मुझे लगता है कि जो सीरियस राइटिंग कर रहा था वो डिकेंस था, तो व्हाई डू यू थिंक एफ आर लीविस ने ये ऑब्जर्वेशन दी होगी? बताइए. सी व्हाट हैपेंस इज, if you've ever read a Dickensian novel, students उसमें ना the kind of tone that Dickens maintains, अगर आपके मार्क ट्वेन के बाद if there's a writer who has to be known for his very subtle sense of humor, his light tone, ठीक है, that is Dickens. तो Dickens की treatment of social issues काफी light होता था. That does not mean he was non-serious about the issues themselves, right? because the kind of treatment that he gave, इनके characters बहुत lively हुआ करते थे, because again mostly अगर characters child characters हैं, he had to show them in a very lively, full of life sense. तो इसीलिए maybe ये observation आई होगी F.R. Lewis की, otherwise तो Dickens को उन्होंने इसलिए include नहीं किया great tradition में. Done? चलो, okay, एक writer यहाँ पर missing है. There's a woman writer जो यहाँ पर missing है, लेकिन हेनरी F.R. लीविस ने कहा था कि वो भी ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट हैं. कौन मिसिंग है? इनफैक्ट डीएच लॉरेंस के बारे में तो F.R. लीविस ने ये कहा था कि ये जो 4 राइटर्स हैं ना ग्रेट ट्रेडिशन के, डीएच लॉरेंस कुड बी अ पोटेंशियल हेयर टू देम. डीएच लॉरेंस उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. बट कौन सी वुमन राइटर जो मिसिंग है? हु इज इट? बताइए. जेन ऑस्टन. स्टूडेंट्स, जेन ऑस्टन मिसिंग है ना, जेन ऑस्टन. ठीक है, डन. चलो, जॉन रस्किन्स चैप्टर ऑन द नेचर ऑफ Gothic from the Stones of Venice made which argument that was enormously influential on the art and crafts movement of 19th century. जॉन रस्किन का एक चैप्टर है ऑन द नेचर ऑफ गॉथिक, जो कि स्टोन्स ऑफ वेनिस में है. बच्चे, वेनिस, स्टोन्स ऑफ वेनिस वैसे भी आर्किटेक्चरल रिव्यू का वर्क है. ही वाज एन आर्ट क्रिटिक. ये पेंटिंग की रिव्यूज करते थे और आर्किटेक्चर के रिव्यूज करते थे. तो ही हैज अ चैप्टर इन दिस बुक कॉल्ड ऑन द नेचर ऑफ गॉथिक. तो इसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ इन 19th century? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टार्ट आंसरिंग. ओके, करो आंसर. That Gothic architecture was aesthetically superior to classical architecture. क्या इनका ये क्लेम था कि गॉथिक आर्किटेक्चर क्लासिकल आर्किटेक्चर से सुपीरियर है? ओके, that the Gothic craftsman's imperfections and creativity expressed human freedom and dignity, while the mechanical precision of Victorian industrial production was expressed workers' enslavement and spiritual death. Seems like a very convincing argument. Okay, Venice's Gothic architecture proved superiority to the Mediterranean over Northern European culture. Now, that the preservation of Gothic buildings was a national duty and they represented the pinnacle of Christian civilization before the Reformations. ये भी नहीं है बच्चे. आंसर आपका क्या हो जाएगा? He said कि जो गॉथिक आर्किटेक्चर है ना, उसमें क्राफ्ट्समैनशिप या आर्किटेक्चर में कुछ इम्परफेक्शंस हैं जो दिखाती हैं
कि एटलीस्ट क्रिएटिव फ्रीडम तो है राइटर्स के क्रिएटर्स के पास, लेकिन जो विक्टोरियन एज में परफेक्शन है, मैकेनिकल प्रिसीजन है, जैसे आजकल आपके पास मॉडर्न आर्किटेक्चर आता है, बहुत ही क्लीन है, देयर आर नो इलैबोरेट डिजाइन एज सच। उन्होंने कहा कि विक्टोरियन आर्किटेक्चर में भी यही प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट हाईलाइट्स द वर्कर्स इंस्लेवमेंट एंड स्पिरिचुअल डेथ। ठीक है, चलो विद दैट वी कम टू योर होमवर्क क्वेश्चन। अब अगर किसी ने ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो पिटाई हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अगेन ये होमवर्क क्वेश्चन का जो हमने कवरेज की है वो क्लास ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर में नहीं की, बट क्रिटिसिज्म में की है। तो आपको ये क्वेश्चन को आंसर करना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज टुमारो एट 8 AM मॉर्निंग में आपके पास ऐप पर टेस्ट होगा, रोमांटिक एंड विक्टोरियन दोनों का मिलाकर कंबाइंड टेस्ट होगा, बिकॉज वी कुड नॉट हैव द रोमांटिक एज टेस्ट डन। तो वील हैव टू हैव अ कंबाइंड टेस्ट। अब कंबाइंड टेस्ट है तो थोड़ा लेंदी होगा, यूजली 1 आवर का टेस्ट होता है, कल 1 आवर से ज्यादा का होगा। ठीक है, चलो दैट विल बी इट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू पीपल वेरी वेरी सून। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड गुड लक।